Good evening, Ashirwad. Okay, so whatever I am writing, it is visible now. Okay, that's fine then. See, so today we are going to start with a language thing. Oh, Ruchit, don't do this, यार. क्या कर रहा है? मैंने वो annotation वाला ये लो. अब करके दिखाओ. रुचित इसे डिलीट कर. अरे डिलीट कर दे उसे. तू कर पाएगा. ओके, गिव मी 1 सेकंड. ऐसे क्लियर करके देखता हूँ. ओके, डन. हाँ, डिसेबल कर दिया. यस. So we are going to start with our C++. सर मैं चैट नहीं कर पा रहा. रवि, चैट में ही तो तुम्हारा मैसेज दिख रहा है मुझे. एवरीवन नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट मैसेजेस होगा. ओके, चलो. डू यू वांट मी टू डू इट एवरीवन? नो, एवरीवन. ओके, अरे ठीक है, देख लो. सो the topic that we are going to start is C++. I told you that the course DSA, the language, obviously for DSA is data structure and algorithm. It is something used for problem solving. Okay, in software development, a lot of role it plays. Okay, all the basic things it provides us. Okay, but to use all of them now, we need some special thing. Okay, that special thing is language. Okay, it could be anything like C++, Java, or anything. C++, Java, Python, Ruby. Okay, you will understand why they are required. Okay, DSA is something that we use to solve problem. Okay, a lot of applications are there internally of it. Okay, like even all of these things are also using some data structures. Okay, so obviously these are the main logic part, the data storage part, and these are used for implementing all of these. Okay, so one of the language we need for implementing DSA. Okay, that's fine, but for our course we have selected C++. Okay, so I am writing something, everyone. See, C++, it is a, don't worry what I am writing. Okay, if you are not able to understand, it is a high level language. Okay, high level language. Okay, something. It is object oriented programming language. Procedural also. Object, and you can say and procedural also. Procedural programming language. Procedural oriented programming language, you can say. Programming language. Those who are not able to get things, don't worry. This is just the starting. When this lecture is going to end now, you are going to understand each and every word. Okay. Okay, so something high level language. Okay, and object and procedural oriented programming language. Okay. One of the thing before we start, why C++? Why we haven't choose Java or Python? Can anyone tell me what are the major advantages of C++ over Java/Python, especially for DSA when we are learning DSA? Yes, Ruchit is correct. Because mainly now you have seen, if you have done a little bit of competitive programming or anything, you have observed most of the coders do the code in C++. Why? Yes, short syntax, inbuilt libraries, correct. Okay, because like for C++ we have something called STL, standard template library. A lot of functionalities have been implemented there. Okay, functionalities by me, like lot of things are there, those things that you need not to write it from scratch. Getting अब scratch से नहीं लिखना, तो obviously we have to write shorter code. Okay, previously if we have to implement it, longer code we have to write it. The same difference like in C. Why we haven't choose C? Because C doesn't have, first of all, object oriented programming. Then second thing is it has not that rich libraries. Like even you have to make a, like power function is implemented there. Like if you want to use a vector, that is a dynamic array, you can't use it in C because it is not there. You have to make a normal array. Okay, int arrn, and that is not dynamic. Okay, for making a dynamic array you have to implement it from scratch.
Okay, so something I'm getting like C++ is better than C because a lot of functionalities are there. Okay, that's why C++ is better. Okay, so C se to difference I got it, but mainly I have seen कि look, people also do it in Java and Python. देखो, similar for C++, in Java we have collection framework. Same work. Like in C++ we have STL. Here we have collections. Python we have different libraries. Okay. Then what is the reason? It is very fast. It is approximately, you can say, 4 times faster than Java. And approximately you can say 10 times faster than Python. Getting everyone? Now, okay, it is faster. That I got it. Like, but mainly I have seen most of the code applications are made in Java or Python. Is that so? Could anybody tell me famous softwares that have been written in C++? Nobody knows. Everyone understand. Even our most of the Windows operating system, C++ itself is fine. Even our operating system, okay, operating system like Windows, okay, operating system, you can say system level software like antiviruses, okay, system level software. Like you have seen drivers now. You have heard about word driver? Drivers. Operating systems mein we have called drivers something. Okay, these are all made using C++. Why? C++ is fast. These all things need speed. Okay, not user interface, not very good user interface, something like that. They need speed. Jitna zyada speed, the better experience we will get. Other thing that have been implemented using C++, mainly most of the high-rex games are written in C++. C++ is used for that. Getting everyone? Uses of C++, where it is used. Okay, so I got something about what is C++. Okay, it's something high level language, object and procedural oriented programming language. It is really fast. Okay, a lot of important softwares like operating system and all of these are written in C++. It has a rich library called STL. Okay, so all of these are points. Okay, good. So that's why we use C++. Now everyone see. Okay, that all reason is fine. What is this high level thing? Everyone, देखो, first of all, before that, high level language. चलो language word आया. What is this language thing? Anyone can tell me what is this language? Yes, Ruchit, correct. Yes, Simran. Yes, language is just, it is, yes, you can say a word collection having meaning, mode of communications. No, see, yes, very good. It is a mode of communication. Correct or not? Language is used for what? It is just a mode of communication. Like if there are two persons, like there are two person, okay, okay. The simple thing is, if this person wants to deliver some information to this person, obviously he needs some mode of communication. Like either normally base we use is like you can write it in paper in some English language, something like that. Hi, I have a party today. Okay, he has written a letter, or he could directly speak the same thing. Yes or no? And why this person get whatever the communicated thing is transferred to him? Because the prerequisite is if this person is writing it in English, okay, this person is in writing in English, that means this person knows English. This person to understand it, he should also know English. Yes or no? So mode of communication, like to share information between two things, we need a mode of communication. And communication, this property gives a, you can say,
this thing is provided us by a language. Okay, anything, Hindi, English, or anything. But now everyone see, this person was knowing English, this person was knowing English, that's fine, so they were able to communicate with each other. But tell me everyone, if this person doesn't know English, this person understand Hindi. Okay, give me 1 second. Now what is a way? Now tell me, is this a English is a valid mode of communication? Obviously it is a language, it is also a language, but tell me, kya mode of communication it will work? Yes or no? He has written it, obviously no. Correct, Simran. Aditya, yes. So Aditya is saying we will require a middleman. Okay, like a third person is required. Everyone see, a third person is required. And that to what? Dekho, that to what? If he knows English and Hindi both. Getting it or not? So what we could do is, he will pass a message. Everyone see, he will pass a message in English. Okay, hello Harsha. Okay, he will pass the message in English, he will convert it. Okay, yes, Kiran is saying a correct word for that, it is a translator. Okay, everyone, remember this word when I'm saying translator, because it is going to be used. Okay, he know English and Hindi. English person has written the message in English. Okay, he is a translator, he knows Hindi also, so in the brain itself he will convert this English code to Hindi, he will transfer the message in Hindi. Correct? Then obviously what will happen, this person will understand, like he want to give response to him, like I want to come to your party, so he will give the message in Hindi. This person know Hindi also, he will convert it to English, he will receive a message in English. Now do you think the communication is being done? Yes, recording is being done. Will you share recording today? Yes, Sindhuja, I will share the recording. Okay, so Aji channel mein I will share with the link with you, and yes, VS Code setup and everything I will provide you. Okay, in the channel itself I will share you the link for that. Don't worry, for those who haven't able to right now set up the VS Code. Okay, video has been made, just some editing part is left out. Okay, so everyone understood it? Ki mode of communication, language is a mode of communication. Okay, sometime when two person knows different language, then a single language can't do it. Okay, so we need some translator thing. Similarly, everyone understand, this was a personal story, but normally we are a human. Okay, we know English like languages, English slash Hindi, some languages like this. Okay, but everyone understand, we want to perform operation in computers. Yes, and computer understand what? Can I say 0 1 or machine language? Machine language, yes, binary language. Correct. Now see everyone, I want to communicate it with, देखो, like मेरा task है, I want कि मेरा brain slow है, my brain is not at fast, I want to calculate something 3 plus 5. Okay, but I don't want to do it by myself, I want my computer to do it. How can I transfer this message, please give me the result for 3 plus 5? Obviously ये तो 0 1 समझता है, computer understands 0 1, how can we do it? देखो, in normal two persons we were requiring what? We were requiring obviously a translator, something like that. Here is something, right now just understand it like a black box. There is something known as compiler here, and compiler is what? It will work like what? Can I say translator? Middleman is there. Compiler is nothing but a translator. Translator of what? Everyone, before that, English and Hindi, all of these languages now, that is understandable by human. Mainly we call them high level languages. Everyone got this point? High level languages are what? That are using English like mnemonics. How many of you got it? High level languages look very much like English.
Okay, they use English like words. Like when you will use na C++, you will see like we will use some words like int, main. Obviously, you can understand main is something telling it is very main. Okay, main thing like int, main, C in, C out, something like this. Return. Obviously, what are these words? RETURN. Obviously, these are English like words. Yes or no? And just tell me, क्या compiler can understand this? Int means C in, C out, return. No, ये तो zero one understand करता है. So simple सी बात है. I want to share my information with this. I can write the code in this high level language thing that is very much using English like words. I want to transfer my information to computer. I want the data to be processed. What can I do? Simple thing is just write your code in high level language like in C++. I know C++. I will write down the code. Okay, I am passing my file. This is my C++ file. Okay, here I have written calculate the program for 3 plus 5. Okay, मैंने कोड पास किया. और सर कोड एडिटर सिर्फ कोड राइट करने में ही यूज होता है ना, सारा काम कंपाइलर करता है ना C++. यस यस किरण, कोड एडिटर इज जस्ट फॉर राइटिंग द कोड, जिससे कि अभी आई विल टेल यू किरण, डोंट वरी अबाउट इट. ओके, अभी जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि आई एम रिटन द कोड समवेयर इन द फाइल. नोटपैड में भी यू कैन राइट इट. ओके, जस्ट इन द फाइल मैंने कोड रिटर्न कर दिया C++ लैंग्वेज यूज करके, समथिंग लाइक इंट मेन, सी इन, सी आउट, दिस टाइप ऑफ वर्ड्स, इंग्लिश लाइक वर्ड्स. ओके, ये मैंने पास किया. कंपाइलर कौन सा पलक, आई विल टेल यू ना, डोंट वरी, पहले स्टोरी तो सुन लो. सर कंपाइलर कौन सा स्टेप फॉलो करता है भी सब बताऊंगा. ओके, इंग्लिश लाइक वर्ड्स, आई गॉट इट. ओके, कंपाइलर विल परफॉर्म सम कैलकुलेशन. ओके, I will make you understand what something happens in compiler. It will make the code in 0 and 1. Okay, and after processing it will get the result. Okay, 0 and 1 and something understandable to human, it is going to print it. Ask a value say yes, देखो it is going to print in, देखो here we will get the result. Something like this happens and this result in English like format so that we could understand it. Everyone understanding what is this compiler thing? What is the role of this compiler between human and a machine? Okay, yes, so something like this happens. Now everyone see compiler steps, how this compiler do. Dekho, I know many of you some of you might be in second year, okay, or third year, so you might not be getting right now whatever I'm going to teach you after this now, that might be little difficult. Yes, it is a mediator. Yes, converts high level language to machine language, vice versa. Yes, now see what will happen after this. So compiler, I understood it works as an intermediator. Okay, so I have made the थोड़ा zoom कर रहा हूँ. Okay, this was the compiler. ऐसा ही कुछ box बनाया था compiler के लिए. This was the compiler. Okay, so compiler के अंदर internally क्या होता है? Everyone see. Here say it was receiving what? A high level code, high level language code, high level language code. Okay, यहाँ कंपाइलर के अंदर जा रहा था एंड हियर इट वाज गिविंग अस 0/1 कुछ फाइल टाइप. ओके, मशीन कोड यू कैन से 0/1 कोड. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इट? सो बिफोर दैट ना हाई लेवल लैंग्वेज कोड, सम प्री प्रोसेसिंग हैपेंस. आई विल टीच यू व्हाट दिस प्री प्रोसेसिंग थिंग्स आर. ओके, चलो अभी बता देता हूँ. व्हेन वी राइट हाई लेवल कोड ना in C++, we use some header file. Okay, don't think about header file. What is, those who don't know, you will understand it slowly. Okay, you can watch the recording again also. For those who are very beginner, some header files is there. Okay, so actually the code that we are going to write, that might seems to be just 5 lines code. It is not actually 5-line code. Okay, so you are saying ki the code that seems to be 5-line code, it is not actually 5-line code, because see everyone what happens here, we include some header file. Header file is what, like whenever we write some code in the C++, some functions are there, some things are there, that is actually their definition, what they are going to do. Like मैंने यहाँ use किया for example C out.
Okay, see out. Something here I have written hi. See out is for printing in, you will understand it, don't worry. See out hi. So what is going to happen here? I have written hash include IOStream. 5 line का code होगा just, everyone see. But actually it is not 5 line code. Why? देखो, computer will understand it how? कि see out, what is the working of see out? So that is actually written in header file. Okay, अब जब header file में इसकी definition is written कि what it is going to do, obviously don't you think it will not be a one-liner code? Obviously a lot of code will be there na, कि how this cout will work, what is the definition of it. So that's why na, when we write a code of 5-line code, before going to compiler, here something happen that is called pre-processing stage. Don't worry यार, अभी टफ लग सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, इसे इतना डीपली अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू गेट द लॉजिक, मेन थिंग. ओके, प्री प्रोसेसिंग स्टेज, स्टोरी की तरह अंडरस्टैंड कर लो, नोट्स बनाओ, एंड इफ यू विल नॉट गेट इट, वॉच द रिकॉर्डिंग अगेन एंड यू कैन आस्क योर डाउट आल्सो. सी, हाई लेवल लैंग्वेज कोड प्री प्रोसेसिंग स्टेज से व्हेन आई पास्ड इट, इट बिकम्स व्हाट? प्री प्रोसेसिंग. देखो 5-line कोड चेंज टू व्हाट? कुछ 1000-line कोड, फॉर एग्जांपल, दैट इज नोन एज प्योर हाई लेवल कोड, प्योर HLL. देखो हाई लेवल लैंग्वेज को आई एम गोइंग टू राइट इट लाइक HLL. okay, short form. A high level language code become pure high level language code. Okay, so now compiler is going to get a pure high level language code, not just this 5-line code जिसमें पूरा कोड होगा, कंप्लीट कोड. ओके, वो कंपाइलर खुद कर लेता है. ओके, प्री प्रोसेसिंग स्टेज के बाद. ओके, आई गॉट द प्योर हाई लेवल कोड. देन व्हाट हैपेंस? दिस कंपाइलर हैव डिफरेंट फेजेस. कुछ लेक्सिकल एनालिसिस होती है, सिमेंटिक एनालिसिस होती है, सिंटेक्स एनालिसिस होती है, ट्री हैव बीन मेड, सिंटेक्स ट्रीज मेड होते हैं. ओके, काफी चीजें होती है, काफी चेक्स होते हैं, लाइक लेक्सिकल एनालिसिस. दीज आर ऑल फेजेस ऑफ कंपाइलर. लेक्सिकल एनालिसिस में क्या होता है? लाइक स्पेलिंग्स तुम्हारे टोकन्स के फॉर्म में चेक किया जाएगा. जैसे तुमने एक प्रोग्राम लिखा, एवरीवन सी, लाइक यू हैव रिटन अ प्रोग्राम दिस हैश इंक्लूड IOStream. अभी बिल्कुल बेसिक से है, अभी तो कुछ ना समझ आ रहा हो ना, डोंट वरी. हाँ, ये कॉल में पढ़ा. हाँ, देखो हैश इंक्लूड IOStream, यहाँ पे लिख दिया कुछ यूजिंग नेम स्पेस std, यूजिंग नेम स्पेस std. छोटा सा प्रोग्राम लिख रहा हूँ, डोंट वरी अगर ना समझ आए. यूजिंग नेम स्पेस std फॉर दोज हु आर बिगिनर. इंट मेन. ओके, यहाँ लिख दिया सी आउट हेलो वर्ल्ड, कुछ भी लिख दिया हेलो वर्ल्ड. okay, or return 0 before this bracket off. Okay, this is a simple C++ code for printing. Cout is for printing in console. Okay, console please output. Abhi you will understand it, don't worry. So this is some code I have written. Okay, this is a high level code. इसे मैंने when I do compile कर दो. Okay, I will teach you how to compile. Compile हुआ, this IOStream जो फाइल है, इसका डेफिनेशन विल बी रिटन. सो ये 5 to 10 लाइन कोड विल बिकम 1000-line कोड अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, ओके, ये कोड तो बड़ा बन गया, प्योर हाई लेवल हो गया. दिस लेक्सिकल एनालिसिस इज व्हाट? देखो इसमें देयर आर वर्ड्स, इंक्लूड, IOStream, यूजिंग, नेम स्पेस, std. ओके, इंट, मेन, सी आउट, हेलो वर्ल्ड. ये हेलो वर्ल्ड एक पूरा टोकन है. दिस सेमीकोलन, रिटर्न, ये सारे हैं टोकन्स. टोकन मीन्स सम वर्ड्स, स्पेस सेपरेटेड वर्ड्स. ओके, ये वर्ड्स हैं, नेम स्पेस, std, यूजिंग. सो ये टोकन्स के फॉर्म में आता है. अब नाउ एवरीवन सी, वैलिड ये है, अगर मैं इसमें मेन की जगह ये लिख दूं MIAN. ओके, नाउ देखो दिस इज अ टोकन, बट टेल मी एवरीवन कि ये करेक्ट टोकन है? कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि अच्छा इसने ये गलत लिखा है यार, तो एरर थ्रो कर देगा. एंड दैट इज गोइंग टू बी चेक्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस, दैट इज स्पेलिंग टाइप एरर्स. ओके, कि तुमने मेन स्पेलिंग ही मिस्टेक कर रखे हैं ऑब्वियसली. सो दिस इज चेक्ड इन लेक्सिकल एनालिसिस. ओके, एंट्री पार्ट होता है मेन. यस, तो प्योर हाई लेवल कोड में सबसे पहले चेकिंग होती है स्पेलिंग मिस्टेक्स. एवरीवन गॉट दिस?
सेकंड थिंग होता है कुछ सिंटेक्स एनालिसिस, अभी मैं इसे डेप्थ में नहीं बताऊंगा. सिंटेक्स एनालिसिस. ओके, सिंटेक्स एनालिसिस क्या होता है? लाइक एवरीवन सी, अब मल्टीप्लिकेशन करते हो, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है. ओके, जैसे 2 into 3 is equal to 6. आई नो दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, मल्टीप्लाई इट डू. ओके, अब एवरीवन मैंने एक प्रोग्राम बनाया, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, like a is equal to 3 है, b is equal to 5 है, and I have written like this. Everyone see, c is equal to a multiply. This is the code I have written. Just tell me कि correct code है? Because why wrong, Simran? Because obviously multiplication operator take two values. Yes or no? And that comes, ये syntax problem है. That is not spelling problem. That is syntax problem कि multiplication operator take two operands जिन पे वर्क करेगा. यहां पे मैंने एक ही दिया है. So that comes under syntax analysis. बोल देगा ये तो syntax ही गलत है, तुमने तो सही से लॉजिक ही नहीं लिखा है. Getting everyone? फिर then comes something like semantic analysis. अभी ये भी समझ आएगा, semantic analysis. Okay, semantic analysis में mainly what happens, a lot of things are checked, like data types variables, इन सब में checking होती है. Like everyone see, यहां तक जैसे ये सब semantics में होता है. Like int float, you might not be knowing it, but try to understand something int is there in C++. Int what do, like if you write like int a, what happens in the memory somewhere int is an integer. तो ये कंपाइलर को बताता है, कंपाइलर प्लीज एलोकेट इंटीजर टाइप मेमोरी इन द मेन मेमोरी. सो व्हाट विल हैपन, ये मेमोरी है तुम्हारी, व्हेन यू राइट दिस स्टेटमेंट ना, कंपाइलर विल गो इन समवेयर int टेक 4 बाइट. ओके, सो 4 बाइट्स, ये समझ लो अभी ये 1 बाइट का एक बॉक्स है. सो समवेयर इन द मेमोरी 4 बाइट्स विल बी एलोकेटेड. एंड नाउ जो ये 4 बाइट्स है ना, these can be accessed, these are reserved for a. ये एक्सेस हो सकती है ओनली ए से, कोई दूसरा वेरिएबल यहां पे नहीं हो सकता. ये एलोकेट होगी, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिक्वेस्ट की तुमने कि int a I have written, ऑपरेटिंग सिस्टम प्लीज एलोकेट 4 बाइट्स फॉर int. ओके, सो a is a 4 byte memory. अब नाउ whenever I am going to write like a is equal to 10, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन अंडरस्टैंड, अच्छा व्हाट इज a. अच्छा ए तो एक मेमोरी थी, एलोकेट किया था, जिसे इसने रिक्वेस्ट की थी तो मैंने एलोकेट किया था इसको मेमोरी. नाउ व्हाट हैपेंस कि a is equal to 10, it will go, compiler will go here, 10 will be stored in binary format. obviously don't worry, binary अब नहीं यहाँ पे पढ़ाने वाला, कैसे स्टोर होगा. ओके, यहाँ पे हो जाएगा 10 स्टोर, अभी के लिए डायरेक्टली मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 10. everyone got it? in 4 bytes में 10 is being stored. fine, कि what happens. ओके, तो सिमेंटिक्स एनालिसिस पढ़ रहे थे. सो आई हैव रिटन लाइक इंटीजर, ऐसे इंटीजर स्टोर करता है इंटीजर्स. यू नो ना इंटीजर्स क्या होते हैं, लाइक जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता, लाइक 1 2 -1 0 4 -3, दीज आर ऑल इंटीजर्स. कुछ होते हैं फ्लोट वैल्यूज, फ्लोट और डबल. ओके, फ्लोट स्लैश डबल जिसमें डेसिमल पार्ट इज देयर, लाइक 1.23. ओके, 4, ये क्या वर्ड बनाया. ओहो, गिव मी 1 सेकंड, हट जा. 2.32, 4.6, 3.33333. getting everyone, these are float values. okay, integer floats, so I get it. like I am making two variables, int a is equal to 3, long name, float b is equal to 3.63. okay, here I am writing something. okay, c out a plus b. okay, ये लिख देता हूं, सी आउट इज फॉर प्रिंटिंग इन द स्क्रीन. ओके, आई हैव रिटन दिस स्मॉल कोड. एवरीवन व्हाट विल हैपन, एवरीवन सी, आई एम एडिंग अ इंटीजर. ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन द मेमोरी, somewhere 3 is stored, that is going to be allocated. give me 1 second, ये ब्लू लाइन कैसे आई है. ओके,
देखो समवेयर इन द मेमोरी 4 बाइट्स आर एलोकेटेड, समझ लो एक बॉक्स 4 बाइट का है, फ्लोट भी ऑल्सो टेक 4 बाइट, यहाँ पे 3 स्टोर्ड, दिस इज बीइंग ए, ओके, ए को एलोकेट की थी मेमोरी, ए नेम से जानी जाएगी दिस मेमोरी, यहाँ पे और 4 बाइट्स एलोकेट की, हियर इट इज स्टोर्ड 3.63, it is being known as B by the operating system. Okay, now here I am writing A plus B. Everyone just tell me कि A plus B is being done. A is of integer type, B is of float type. Just tell me what will be the result. Result का टाइप क्या होगा? जैसे 3 plus 3.63, इसको जब ऐड करेंगे what will be the type of result? Yes, compile, yes, correct आदित्य, कंपाइलर के हिसाब से इट विल बी अ फ्लोट, व्हाई, इसका आंसर होगा 6.63, करेक्ट, 6.63. सो ये इंटरनली कौन कर रहा है? ये सिमेंटिक एनालिसिस कर रहा है, ओके, कि सिमेंटिकली ये करेक्ट हो, कि तुम किसी गलत नंबर्स को ना ऐड करो. अब सिमेंटिकली क्या होगा, इंट प्लस फ्लोट, कंपाइलर ना एवरी टाइम क्या करेगा, कंपाइलर ट्राई करेगा कि एरर कम से कम हो ओरिजिनल रिजल्ट से, समझो. अब 3.363 को अगर इफ आई कन्वर्टेड इट टू इंटीजर, देन इसका रिजल्ट होता सिर्फ 6, ये 63 पार्ट हट जाता, डेसिमल पार्ट, करेक्ट और नॉट. अगर ये इंटीजर में कन्वर्ट होता, ये इंटीजर में कन्वर्ट होता, तो दिस वुड बी द आंसर. ये फ्लोट में आंसर होता, देन दिस वुड बी द आंसर, करेक्ट. 6.63 इंटीजर में होता तो 6. अब बताओ बेटर आंसर कौन सा है? Main compiler always try to minimize the error. That's why float has given more priority. So total answer will be 6.63. Okay, that is being done in semantic analysis. किसको ज्यादा priority देनी है? Getting? So before even doing this ना, ये automatically convert हो जाएगा float में पहले. समझ आया? I have written A plus B. It is going to be replaced by 3. It is going to be replaced by 3.63. ये तो फ्लोट था ही, ये खुद भी फ्लोट में कन्वर्ट कर देगा इसे. ये सिमेंटिक एनालिसिस करता है, गेटिंग, कि इसे पहले फ्लोट में बना दे. दैट मींस व्हाट, कि 3 plus 3.63 लिखा ना, फ्लोट में बना दोगे तो 3 कन्वर्ट हो जाएगा 3.0 में. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस? एवरीवन गेटिंग? कंपाइलर क्या कर रहा है सिमेंटिक एनालिसिस में, something like this. Okay, then there is a step. ओहो, ये कैसे हटाऊं? ओहो, okay, so see, ये तो समझ आया सिमेंटिक एनालिसिस क्या है. सर इंट को प्रायोरिटी क्यों नहीं मिली? इंट को प्रायोरिटी इसलिए नहीं मिली, रवि जस्ट मुझे बताओ, इंट को प्रायोरिटी मिलती तो व्हाट वुड बी हैव बीन द रिजल्ट? रिजल्ट क्या होता है a प्लस बी का? ये देखो यहां लिखा है 6. अब करेक्ट सत्यम, 6 होता आंसर. अब बताओ 6 बेटर आंसर है 6.63. कंपाइलर ना ऑब्वियसली फ्लोट को वैल्यू ज्यादा देगा. व्हाई फ्लोट को वैल्यू ज्यादा देगा? बिकॉज मिनिमम डिफरेंस विद द एक्चुअल आंसर ज्यादा एक्यूरेट है. ओके, दैट इज बीइंग डन इन सिमेंटिक एनालिसिस. कंपाइलर को डिजाइन ही इस तरीके से किया है. गेटिंग एवरीवन दिस पॉइंट? कि वाई 6 और 6.63 नॉर्मल इंट और फ्लोट का ऑपरेशन होगा, फ्लोट को प्रायोरिटी देंगे. व्हाई? बिकॉज फ्लोट से ज्यादा बेटर आंसर मिलेगा. इंटीजर में करते तो 6 आंसर मिलता जस्ट, क्योंकि 6.63 इज नॉट इंटीजर, तो डेसिमल पार्ट हटा देते. इंट को प्रायोरिटी दे दी तो एक्यूरेसी कम होगी. यस करेक्ट किरण, दैट्स व्हाई. ओके, सो ये तो समझ आया. इसके बाद क्या होता है ना, ये सारे चेकिंग हो गई है. मैंने स्पेलिंग चेक कर ली, सिंटेक्स चेक कर लिया कि सब इज प्रॉपर्ली रिटन, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली रिटन. सिमेंटिक एनालिसिस कर दिया टू गेट एवरीथिंग कि इट इज करेक्टली रिटन. Answer should get the answer that we are getting should be as accurate as possible. All of these things are done. Then there is one step called intermediate code generation. Intermediate code generation. Okay, everyone see, ये step थोड़ा important है. अभी तक we have done most of the things. Now this is the actual conversion part. Intermediate code generation पे work करता है actually what? हमारा कंपाइलर क्या करता है ना,
एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है। मेनली 3 एड्रेस कोड्स होते हैं। दोज हु आर फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड दे कैन अंडरस्टैंड। 3 एड्रेस कोड होते हैं, डैग रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, उनमें कन्वर्ट कर देता है। दैट इज नॉट, ये यू कांट से कि ये 0 एंड 1 होते हैं, दैट इज नॉट 0 एंड 1, बट इट इज मोर क्लोजर टू हार्डवेयर। लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, अगर समझ लो ये मेरा कंप्यूटर है, ये सबसे कम किसे समझता है? हाई लेवल लैंग्वेज को सबसे कम समझता है। इसके बाद ये किसे, देखो हाई लेवल लैंग्वेज सबसे कम, देन समझता है इंटरमीडिएट कोड को जो जनरेट होता है, ओके। देन इंटरमीडिएट कोड, अब ये जनरेट होता है, इससे कौन प्रोसेस करेगा? देखो कंपाइलर के अंदर ही, अब तो मेनली कंपाइलर के अंदर ही, कंपाइलर के अंदर यू कांट से, क्योंकि असेंबलर्स डिफरेंट डिफरेंट अपने अपने कंप्यूटर्स के भी अलग होते हैं, ओके। सो व्हाटएवर दिस इंटरमीडिएट कोड जनरेटेड इज, ओके, समझ लो इस कोड का कुछ इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ होगा, दैट इज पास टू असेंबलर। ये कंपाइलेशन प्रोसेस ही हो रही है, बट इसी के अंदर असेंबलर का काम आता है। असेंबलर डू व्हाट? इंटरमीडिएट कोड को लेगा एंड इट जनरेट्स व्हाट? गिव मी 1 सेकंड। यहां से इसके अंदर काफी चेकिंग होती है, मैं 2 स्टेप नीचे को छोड़ रहा हूं, ओके। इसी के अंदर चेकिंग होती है। डायरेक्टली आई एम सेइंग कि असेंबलर वर्क करता है एंड इसके बाद जनरेट कर देता है 0 एंड 1 कोड, ओके। काफी हद तक 0 एंड 1 कोड बन जाता है। अब देखो ये जो कोड बना है, इसमें क्योंकि अभी ज्यादा डेप्थ में नहीं बता सकता ये, क्योंकि इससे फिर तुम्हें और चीजें एब्स्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी समझो, ओके। इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, असेंबलर में पास हुआ। असेंबलर होता है मशीन डिपेंडेंट। व्हाट आई मीन बाय मशीन डिपेंडेंट, समझ लो। देखो एक ये तुम हो, तुमने अपने लैपटॉप में, ये तुम्हारा लैपटॉप है, ये कोई तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारे दोस्त का कंप्यूटर है, ओके। तुमने सेम यही कोड, इतना कोड ये जो लिखा है ना, यही कोड यहां पे लिखा, यही कोड इसने यहां पे लिखा, सेम कॉपी पेस्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेम कॉपी पेस्ट, सेम कंपाइलर यूज कर रहे हो, सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हो, गेटिंग एवरीवन? सेम एडिटर यूज हो रहा है, सब सेम है, ओके। तुम दोनों ने लिखा, तुम्हारी मशीन है, समझ लो कोई दूसरी मशीन है, एक्स मशीन है, तुम्हारी वाई मशीन है, समझ लो ये डेल यूज कर रही है, एचपी यूज कर रहा है, ओके। डिफरेंट मशीन है, सेम कोड, सेम कंपाइलर, एवरीथिंग डिफरेंट पर्संस। यहां तक ना देखो हाई लेवल लैंग्वेज कोड तो बिल्कुल सेम है, दोनों के सेम है। प्योर हाई लेवल कोड विल बी आल्सो सेम सिंस कंपाइलर यू आर यूजिंग द सेम। लेक्सिकल एनालिसिस भी दोनों में सेम होगी, सिंटेक्स एनालिसिस भी अभी भी दोनों में सेम होगा। मैं यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ, ये सेम है एस, ये सेम है, ये सेम है, यहां तक भी सेम होगा रिजल्ट, इधर तक भी सेम होगा रिजल्ट, इधर तक भी सेम होगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन भी जो इसके लिए बनेगा ना, सेम इसके लिए बनेगा, सेम कोड के लिए, बिकॉज सेम कोड। बट असेंबलर मशीन डिपेंडेंट होता है मेनली, गेटिंग एवरीवन? सो जो तुम्हारे लैपटॉप के लिए एक मशीन कोड बनेगा ना यहाँ पे 0 1 वाला, और ये इसके जो इसके लिए बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट, ओके। व्हाई? क्योंकि समझ लो मेरी मशीन को कुछ और अच्छे से समझ आता है, इसकी मशीन को कुछ और अच्छे से समझ आता है, तो अकॉर्डिंगली डिफरेंट असेंबलर्स होते हैं सबके, और वो अकॉर्डिंगली अपना कोड बनाते हैं। सो ये वाला जो कोड होगा मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ये सारा अभी तक मशीन डिपेंडेंट स्टेप्स थे, ये मशीन डिपेंडेंट स्टेप। इसके बाद क्या होगा? व्हाट हैपेंस? इसके बाद होता है लिंकिंग लोडिंग प्रोसेसेस, लिंकिंग एंड लोडिंग प्रोसेसेस। डोंट वरी, ये बता दूंगा क्या होता है, ओके। कुछ होता है अभी के लिए समझ लो। इसके बाद तुम्हारा बन जाता है EXE फाइल, यहां पे तुम्हारी बन जाती है EXE फाइल। हाउ मेनी ऑफ यू नो EXE फाइल्स? एग्जीक्यूटेबल फाइल, यही तुम्हारा मेन आउटपुट दिखाता है। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस कि EXE फाइल किस किसने देखा? दोज हु आर यूजिंग विंडोज ना, दे माइट हैव सीन, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर तुम्हें इंस्टॉल करना होता है वो EXE फाइल फॉर्मेट में मिलते हैं, यस नो, एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में, यस। EXE फाइल बन गया, अब ऑब्वियसली यू कैन डायरेक्टली यूज इट यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट और एनीथिंग, डायरेक्टली यूज करोगे। तो ये जो तुमने प्रोग्राम लिखा था ना, EXE फाइल जब रन करोगे तो स्क्रीन पे ऐसा लिख के आएगा, हेलो वर्ल्ड, गेटिंग? किसको किसको समझ आया कि व्हाट इज हैपनिंग?
हाई लेवल लैंग्वेज कोड प्री प्रोसेसिंग होती है, प्योर हाई लेवल कोड बन जाता है, कुछ एनालिसिस होती है, सारी स्पेलिंग मिस्टेक, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस होती है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है, ये सारा सेम होता है। फिर मशीन डिपेंडेंट असेंबलर काम करता है अकॉर्डिंग टू मशीन, यस सर गॉट इट ऑल पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू मशीन कोड बनाता है 0-1 फॉर्मेट में, उसी में लिंकिंग लोडिंग प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनती है, एंड एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो हमारा काम हो गया, यस और नो, that thing. If the code is same, then also the assembler code will be different. If the code is same, then also the obviously यार assembler is machine dependent. Like तुम्हारे लैप कंप्यूटर का assembler is written by the company itself. इसको हार्ड कोड कर दिया जाता है, फर्मवेयर ये सब होते हैं हार्ड कोडेड होते हैं, इसका assembler will work differently, इसका assembler will work differently. कभी किसी के मुंह से सुना कि मुझे assembler इंस्टॉल करना है? लोगों ने ये तो सुना होगा आई हैव टू कंपाइलर इंस्टॉल करना है, उसका असेंबलर इंस्टॉल करने का सुना? सो व्हाट इज द मेन जॉब ऑफ असेंबलर? आशीर्वाद असेंबलर का मेन रोल होता है इंटरमीडिएट जो कोड जनरेशन होता है, द 3 एड्रेस कोड, जो क्या नाम 3 एड्रेस कोड्स होते हैं, डैग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन होते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के। सो ये ना इज नॉट लुकिंग लाइक हाई लेवल लैंग्वेज, बट इट इज फार मोर अंडरस्टैंडिंग टू कंप्यूटर, सो इसे असेंबलर करता है। देखना, give me 1 second guys, give me 1 second. Yes, so assembler क्या करता है? So why we don't make a computer who can understand high level? अरे no, it is difficult. देखो आदित्य, why we can't directly make a computer who can understand high level directly? देखो 0-1 एक अलग एडवांटेज भी है, ओके, मेमोरी मैनेजमेंट और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। 0-1 ऐसे ही डायरेक्टली नहीं होता। क्या हुआ? ओके, सो मेन थिंग इज असेंबलर क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन लेता है डिफरेंट डिफरेंट, उसे मशीन कोड में करता है, मशीन कोड मशीन के डिपेंडेंट होता है, सो अकॉर्डिंग तुम्हारे मशीन के अकॉर्डिंग मशीन कोड जनरेट करेगा, उसी में सम ये लिंकर एंड लोडर होते हैं, ये लिंकिंग एंड लोडिंग प्रोसेस वही करते हैं, लिंकर एंड लोडर्स, ये कंपाइलर के साथ मिलता है, ओके, और फिर ये प्रोसेसेस होने के बाद फाइनली तुम्हें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिलती है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फाइनली एबल टू गेट इट और एनी डाउट इज देयर? You can ask it. Everyone responds, got it sir, yes sir, got it. Okay, anyone else? Got it sir. Okay, understood sir. आशीर्वाद सर exe फाइल ही रिजल्ट होता है? देखो ऑब्जेक्ट फाइल भी होता है, बहुत सी चीजें होती है, देखो यस सर, ओके एवरीवन गॉट इट, दैट्स फाइन। देखो आशीर्वाद exe फाइल आउटपुट फॉर्मेट की डिफरेंट डिफरेंट फाइल हो सकते हैं, बट एग्जीक्यूटेबल फाइल इज मोर स्टैंडर्ड, ओके, लाइक ऑब्जेक्ट फाइल्स बनती हैं, ऑब्जेक्ट फाइल के बाद भी ना फाइनली जो तुम्हें रिजल्ट चाहिए होता है वो क्या होना चाहिए, वर्क करना चाहिए ना। ऐसे वर्क करने के लिए मेनली हमारे जो तुम्हारे लैपटॉप में देखा होगा, कोई भी तुम गेम इंस्टॉल करते हो, फाइनली जो तुम जिसे क्लिक मारने के बाद गेम ऑन करते हो वो किस फॉर्मेट में होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, द फाइल टाइप क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल होता है, उसके पीछे अगर ध्यान से देखोगे .exe लिखा रहेगा। वाई? क्योंकि तुम्हारे विंडोज को आदत है exe फाइल्स डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है, ओके, वो तुम्हारा रन जो तुम्हें आउटपुट चाहिए वो शो करता है, दैट्स व्हाई स्टैंडर्ड इज exe फाइल। यहां बीच में ऑब्जेक्ट फाइल्स भी बनते हैं, लिंकिंग लोडिंग प्रोसेस होता है और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, ओके। आशीर्वाद समझ आ रहा पॉइंट या नहीं आ रहा जो बोल रहा हूं? .exe मींस सॉफ्टवेयर, हाँ विंडोज के लिए .exe मींस एग्जीक्यूटेबल फाइल्स, तो सॉफ्टवेयर में मेनली हमारे विंडोज में वही यूज होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एज ए एक्सटेंशन .exe, यस, ये अपने विंडोज के लिए, फॉर विंडोज आई एम टेलिंग, ओके, फॉर मैक इट इज डिफरेंट। एवरीवन गेटिंग? आशीर्वाद कोई डाउट है तो जल्दी पूछो फिर आगे बढ़े। आ गया ये लड़का, ओके, मैक के लिए, मैक के लिए उनका डिफरेंट होता है, ओके, क्लियर है सर, ओके। सो सिर्फ exe फॉर्मेट में रिजल्ट नहीं आता, ऑब्जेक्ट फाइल्स भी बनती हैं, डिफरेंट थिंग्स आर देयर, बट फाइनली हमें रिजल्ट चाहिए होता है exe फॉर्मेट में, सो दैट इट कुड रन। बताइए दो सर, क्या बता दो, सेम होता है, देखो मैक के लिए भी ना यहां तक वर्क सेम होता है, असेंबलर तक लिंकिंग लोडिंग, फाइनल रिजल्ट में डिपेंड, ओके।
फाइनली यहाँ पे रिजल्ट डिफरेंट हो जाएगा। इतना स्टेप मैप के लिए भी सेम होगा। ओके, हाई लेवल कोड, प्योर हाई लेवल कोड, कंपाइलर भी वर्क, असेंबलर होता है मैप का भी, 0-1 कोड कन्वर्ट होता है, उसमें भी मेमोरी होती है, लिंकिंग एंड लोडिंग उसमें भी होती है, फाइनल रिजल्ट होता है विंडोज में एक्सी होता है, उसमें कुछ और होता है। एवरीवन गॉट इट? चलो ठीक है। नाउ आफ्टर दिस, तो मुझे कंपाइलर तो समझ आ गया, इसके बाद मुझे रिजल्ट मिल गया, ऑब्वियसली आई यूज्ड इट। चलो अब थोड़ा सा कोडिंग पार्ट पे आ जाते हैं। अभी तक तो सर बहुत थ्योरी थ्योरी हो गया कि काम कैसे कर रहा है, मैं कंपाइलर समझ गया हूँ, आई अंडरस्टूड द कंपाइलर थिंग कि ओके इट इज अ सिंपल ट्रांसलेटर। अब ये ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। हम यहाँ से हाई लेवल कोड एक देते हैं, हाई लेवल कोड इज वेरी मच लुकिंग लाइक इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, सो हमें इजी होता है लिखने में। ऑब्वियसली यू कांट राइट द कोड इन 0-1 कंप्लीटली, सो हाई लेवल लैंग्वेज टाइप में लिख देते हैं। प्योर इंग्लिश भी नहीं होता है, बट ऑब्वियसली लॉजिक इजिली हम सेंड कर सकते हैं। ओके उसमें लिखते हैं, कुछ प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, यहाँ बीच में कंपाइलर होता है। इसके बाद हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल मिल जाती है फाइनली, और यू कैन से आउटपुट फाइल मिल जाती है, इधर आउटपुट मिल जाता है। करेक्ट और नॉट? समथिंग लाइक दैट। इतना तो मैं समझ गया हूं। अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं कि चलो ये तो समझ गए हैं कंपाइलर ये सब, अब हमें थोड़ा कोडिंग पार्ट पे आते हैं कि एक्चुअल में कैसे करना है ये सब। 1 सेकेंड, स्क्रीन विजिबल राइट नाउ? अच्छा नहीं होगा, मैं करता हूँ। इज इट विजिबल राइट नाउ? ओके सी, ये VS कोड तुम लोगों को भी यार सेटअप मिल जाएगा, तुम लोग भी कर देना। ओके वीडियो बन गई है, एडिटिंग में है बस। ओके सी एवरीवन, सो यहाँ पे मैं कुछ करने वाला हूँ। देखो ऐसा फॉर्मेट में खुला है, फोल्डर के अंदर मैंने VS कोड ओपन किया है। एवरीवन सी, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन दे रहा है, फोल्डर बनाने का ऑप्शन दे रहा है। तुम्हें फाइल बनानी है, फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा एवरीवन? देखो मैं फर्स्ट प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट हेलो वर्ल्ड बनाते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम इज हेलो वर्ल्ड। ओके इसमें क्या करेंगे, हमें बस स्क्रीन पे कंप्यूटर से बोलना है, कंप्यूटर जस्ट प्रिंट ऑन स्क्रीन हेलो वर्ल्ड, इतना कर दो बस। ओके सो हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी आई एम राइटिंग। व्हाट इज दिस डॉट सीपीपी? देखो सिमिलर, मैं एंटर करता हूं। देखो व्हाट इज दिस एक्सटेंशन थिंग बिफोर वी मूव फॉरवर्ड? देखो एक्सटेंशंस क्या बताते हैं, किसी को पता है एक्सटेंशंस क्या बताते हैं? Extensions is for telling the compiler what is the necessary software you need to use to access this file. फाइल का टाइप बताते हैं। करेक्ट अभिषेक गुप्ता एंड एवरीवन, ओम करेक्ट। ये टेल करते हैं फाइल का टाइप। फाइल के टाइप से क्या, इट टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके ऑपरेटिंग सिस्टम को टेल्स ओएस टू यूज which type of software to run this file, to run or use this file, dot app is an extension for Mac OS executable file, but internally they call the .exe file. Okay विनय, ओके हाँ अच्छा, ये डॉट एवरीवन अभी कर रखा है ना मैंने। ओके एक सेकेंड, थोड़ा मैसेज देख लूं कोई छूटा तो नहीं। हाँ ऊप्स में भी पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, गॉट इट्स नाइसली एक्सप्लेन, फाइन है। चलो सो देखो क्या बताया अभी तक कि फाइल टाइप्स बता, ये डॉट एक्सटेंशंस बताते हैं ये फाइल टाइप्स होते हैं, टेल्स द ओएस टू यूज विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक अगर मैंने यूज किया डॉट MP3 किसी फाइल के आगे, ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली समझ जाएगा MP3 है, दैट मींस इट इज अ ऑडियो फाइल। तो क्या यूज करना चाहिए, एनी मीडिया प्लेयर यूज कर सकते हो, यस नो, मीडिया प्लेयर यूज कर सकते हो। तो मीडिया प्लेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कैन रन दिस टाइप ऑफ फाइल। डॉट MP3, डॉट MP4 दिखा या MKV कुछ भी ऐसे, तो क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम विल अंडरस्टैंड दीज आर वीडियो फाइल्स। मीडिया प्लेयर चलाओ, VLC, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके अगर उसने देखा डॉट जावा लिखा हुआ है तो कंपाइलर समझ जाएगा कि JVM को कॉल करना पड़ेगा फॉर इट टू रन।
अगर यहाँ लिखा हुआ है डॉट टीएक्सटी, टीएक्सटी मतलब टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड से किसी से लिखी गई है, तो उसे पता है नॉर्मल नोटपैड यूज करो और उससे रन हो जाएगा, यार दिखने लगेगा क्या इसके अंदर लिखा है नोटपैड। अगर उसके आगे लिखा है डॉट एचटीएमएल तो समझ जाता है कि इसे ब्राउजर चाहिए होगा टू पार्स इट, इसे पार्स करेगा तो ब्राउजर में इसका रिजल्ट दिखेगा। यस या नो? देखा ना, डॉट एचटीएमएल के साथ अगर सेव करोगे तो डायरेक्टली ब्राउजर में ऑन होता है। यस या नो? ऑपरेटिंग सिस्टम समझ जाता है एक्सटेंशन देख के कि विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टू यूज, सो दिस इज द यूज ऑफ एक्सटेंशंस। सो अभी हम कोड किस में लिख रहे हैं? डॉट सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस में लिख रहे हैं, तो हमें सेव करना होगा डॉट सीपीपी से। ये कंपाइलर को बता रहा है, देखो यहाँ पे सिंबल बन गया डॉट सी प्लस प्लस। ये क्या बता रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल चुका है कि दैट इज अ सी प्लस प्लस फाइल, सो सी प्लस प्लस कंपाइलर जहां भी दिखेगा ना वो इसे रन करेगा। ओके एवरीवन, गॉट इट? ओके, चलो एक्सटेंशन तो हमें समझ आ गए। नाउ एवरीवन सी हियर। ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर समथिंग। देखो हैश इंक्लूड, अभी डोंट वरी कि क्या लिख रहा हूं, आई नो मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग अंडरस्टैंडिंग इट राइट नाउ कि क्या लिख दिया। यूजिंग नेम स्पेस std int main return 0। ओके, मैंने ये लिखा है और यहां पे कुछ लिख दे रहा हूं, देखो सी आउट हेलो। सर विजिबल नहीं है? हाँ, ये क्या हो रहा है बे? तो अभी तक जो मैं लिख रहा था वो दिख नहीं रहा था? अच्छा, ओके ओके, समझ गया मैं। अब विजिबल है? ओके, सो आई हैव रिटन इज हेलो वर्ल्ड, समथिंग लाइक दिस। ये मैंने कोड लिखा है। ओके, देखो दीज आर ऑल 5 लाइन कोड। ओके, ये पूरा एक 5 लाइन का कोड है। अब देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड का मीनिंग बताऊंगा। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली बिकॉज ये कोड ऑलवेज यूज करोगे, इस लाइन को छोड़ के ये कोड ऑलवेज यूज करना पड़ेगा सी प्लस प्लस का कोई भी प्रोग्राम लिखोगे। ओके, तो समझ लेते हैं इसका मतलब ईच वर्ड की कुछ वैल्यू है। ओके, सो एवरीवन ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। आज हमें सिर्फ यही तोड़ना है कि क्या क्या कर रहे हैं। ओके, कैसे इसे रन कराना है, क्या होता है, कंपाइलर कैसे कॉल होगा, वो एक एक स्टेप वी विल सी। ओके, एवरी स्टेप वी विल सी। ओके, 47 participants. Give me 1 second. Okay. समझ आ गया, चलो फिर तो अच्छी बात है। चलो इधर आओ। अब देखिए हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये कुछ लिखा है, अभी बताता हूँ क्या लिखा है। ओके, ये क्रैक करना है। यूजिंग, ये बताऊंगा। नेम स्पेस क्या होते हैं ये जानेंगे, कि एसटीडी क्या है ये बताते हैं। इंट मेन क्या है ये, सी आउट ये क्या है, ये रिटर्न 0 का क्या काम है। ओके, सो यहां से स्टार्ट करते हैं। एवरीवन सी, मेन से स्टार्ट करते हैं। पहले ये मेन चीज क्या है, ओके, फिर ये बाद में आईओ स्ट्रीम पे जाएंगे। ये मेन एज अ नेम, इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि कुछ मेन है। ओके, मेन क्या है मेन? अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे, ओके, रन करोगे, ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन सर्च करता है। ओके, मेन सर्च क्यों करता है? क्योंकि ये सबसे मेन फंक्शन होता है कि अगर जो भी तुम्हें लॉजिक लिखना है ना, स्टार्टिंग पॉइंट यही होता है। तुम प्रोग्राम में कुछ भी लिख दो, एबीसीडी कुछ भी लिख दो, सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम कहां से रन करेगा? एंट्री पॉइंट होता है मेन फंक्शन। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर जो भी लिखा होता है वो एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है। अब एवरीवन सी, ओके, सो वी गॉट दिस कि ऑपरेटिंग सिस्टम एंट्री पॉइंट इज मेन। ओके, सो सबसे मेन फंक्शन इज देयर, दिस इज द मेन फंक्शन, दैट्स व्हाई। इंट क्या रिप्रेजेंट करता है? सम रिटर्न वैल्यू। अब यू विल अंडरस्टैंड इट। देखो रिटर्न वैल्यू क्या, दिस इज द फंक्शन नेम। ओके, इंट सजेस्ट कि व्हाट इज बीइंग रिटर्न्ड। देखो फंक्शन, अभी के लिए फंक्शन यू विल अंडरस्टैंड इट इन डेप्थ, डोंट वरी, अभी के लिए जस्ट समझ लो फंक्शन इज व्हाट, एक ब्लैक बॉक्स टाइप समझ लो। ओके, इस ब्लैक बॉक्स में
हियर डेफिनेशन इज रिटन कि ये वर्क कैसे करता है। ओके यहाँ पे स्टेप्स लिखे तो 1 2 3, सिमिलरली दीज आर स्टेप 1 2। ओके पीस ऑफ कोड इज रिटन इन दिस फंक्शन। फंक्शन कुछ रिटर्न करता है, रिटर्न क्या करता है, कुछ रिजल्ट। ओके रिटर्न रिजल्ट, ये जो रिटर्न रिजल्ट करता है ना इसका टाइप होगा कुछ, लाइक टाइप क्या हो सकता है, you may be returning a integer like 3, you may be returning a float value like 4.6, you may be returning anything like a string होती है ऐसे, like समझ लो मैं अपना नाम लिख देता हूँ रवि। ओके एनीथिंग। अब देखो we have to tell the compiler ना कि this main function is returning what, so main function compiler को I have tell कि it is going to return a integer। ओके integer return कर रहा है, integer में क्या रिटर्न कर रहा है, 0। Everyone try to understand the significance। देखो मैंने लिखा हुआ है return 0, return 0 का significance समझना। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन, स्टार्ट किया, इसके पास आया सी आउट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। ओके दिस वर्क इज डन, एवरीवन सी स्क्रीन पे हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट आई रिटर्न 0, रिटर्न 0 से क्या हुआ, देखो रिटर्न कर दो 0, किसने कॉल किया था इसे, एवरीवन टेल मी, मेन फंक्शन को किसने कॉल किया था, कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया था। रिटर्न 0 मतलब भेज दो, जिसने तुम्हें कॉल किया उसे भेज दो 0। ऑपरेटिंग सिस्टम के पास क्या रिजल्ट आया वापस, 0। अब देखो 0 के सिग्निफिकेंस क्या है, 0 इज एन इंटीजर, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर int main, कि main इज अ फंक्शन दैट इज गोइंग टू रिटर्न अ इंटीजर। 0 मेरे पास आया। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए 0 की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इज गेटिंग 0 दैट मींस प्रोग्राम रन मुझे नहीं पता क्या बोले, रन सक्सेसफुली। ओके और इफ इट इज रिसीविंग एनी नॉन जीरो वैल्यू लाइक 1 -1 anything, that means program isn't run successfully, program doesn't run successfully, कोई ना कोई एरर आ गया होगा, कंपाइलर टाइम एरर, एनीथिंग, लेक्सिकल एनालिसिस में प्रॉब्लम आया होगा, कुछ तो आया होगा। इफ सक्सेसफुली रन देन रिटर्न, अदरवाइज एनी गार्बेज। करेक्ट, एवरीवन गॉट इट। लाइक अगर यहाँ पे मैं ना -1 रिटर्न करता तो एक्चुअली ये जस्ट एक चेक मार्क होता ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ये नहीं बोलता कि एरर आ गया है, उसे इससे मतलब नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट अपने सिग्निफिकेंस, ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट फॉर इट्स सिग्निफिकेंस टेक दीज वैल्यूज, रिटर्न वैल्यूज फॉर इट्स सिग्निफिकेंस, कि ये क्या है 0 इफ इट इज रिसीविंग द प्रोग्राम रन सक्सेसफुली, नॉन जीरो वैल्यू एनीथिंग -1 1 0 8 4 9 कुछ भी, दैट इज टेलिंग प्रोग्राम डजंट रन सक्सेसफुली। सर वैल्यू रिटर्न क्यों करवाते हैं और कब करवाते हैं, देखो वैल्यू रिटर्न क्यों करवाते हैं, वैल्यू रिटर्न इसलिए करवाते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हमारा जो ये इंट मेन एक स्टैंडर्ड है। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी प्रोग्राम लिखा होगा C++ में, इट विल सर्च फॉर इंट मेन। अगर यहाँ पे एक वॉइड मेन भी लिखा होगा ना, वॉइड मेन, अब तो न्यू कंपाइलर्स आ चुके हैं वो वॉइड मेन को भी सर्च कर लेते हैं, बट मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम इन C++ सर्च फॉर इंट मेन। ओके इंट मेन क्यों, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम नोज कि मुझे जितनी इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ना, दिस मेन फंक्शन इज गोइंग टू गिव मी। कितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जस्ट इतनी कि मेन फंक्शन होना चाहिए वो एंट्री पॉइंट, एंड उसे एक इंटीजर रिटर्न होना चाहिए। ओके क्यों करवाते हैं, देखो क्यों इसलिए करवाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, अब समझ लो कोई सोसाइटी है, वो कोई काम कराती है। ओके डोंट यू थिंक यहाँ पे एक मैनेजर था, वो ये सोसाइटी में फंक्शन कराता था, ये कॉल करता है एक कमिटी, सो कमिटी से जो भी रिजल्ट आए इसे एक बार ट्रांसफर होना चाहिए, यस या नो। समझ लो कोई फंक्शन कराना है एक सोसाइटी में, सर अगर हम रिटर्न नहीं लिखते तब भी वो रन कैसे होता है, अरे पलक ये पहले नहीं होता था, अब रन होता है, बिकॉज नाउ कंपाइलर आर रियली एडवांस। अभी C++ यू कैन से 11 के बाद, 11 के बाद, हाँ 11 और 11 के बाद सारे कंपाइलर में ये स्टेटमेंट ना भी लिखो तो भी चलता है, यू विल अंडरस्टैंड इट व्हाई, अभी मैं बताता हूँ। ओके ये स्टोरी समझो, एक सोसाइटी में यू हैव टू डू अ फंक्शन। ओके एक फंक्शन मतलब अभी वो वाला फंक्शन मत समझना, एक जैसे
कोई होता है ना यार, फंक्शंस होते हैं वो उस टाइप में। सो यू हैव टू डू दैट फंक्शन। सो एक कमिटी बनाई, ओके, कमिटी में यहाँ पे कुछ वर्क होगा। अब जस्ट टेल मी, इस मैनेजर ने कमिटी स्टार्ट कराई थी, ये मैनेजर का कोई रोल नहीं है अंदर काम करने में, काम लोगों ने किया है यहाँ पे, ओके। जस्ट टेल मी, ये काम जब कंप्लीट हो गया, फंक्शन हो गया, सब हो गया, अब इस मैनेजर को एटलीस्ट ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि सोसाइटी का काम जैसा हुआ है एक बार इसे फीडबैक दे दें? यस और नो? अब जस्ट टेल मी, क्या फीडबैक इज कंपल्सरी और नॉट? फीडबैक कंपल्सरी होता है या नहीं होता है? कंपल्सरी और नॉट? जस्ट टेल मी। फीडबैक कंपल्सरी नहीं होता है, नॉट। फीडबैक कंपल्सरी नहीं होता है, ये एक ऑब्लिगेशन होती है, मॉरल ऑब्लिगेशन होती है। तो सिमिलरली ऑपरेटिंग सिस्टम इंट में इनको कॉल क्यों करता है? इसे लगता है कि ये सिर्फ वैल्यू देगा, ओके, ये वैल्यू देगा 0। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बता रहा है कि प्रोग्राम्स रन सक्सेसफुली और नॉट। ये जस्ट ऑब्लिगेशन है, अगर तुम इसे नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। अब देखो, मैनेजर अगर इसे 1 वैल्यू मतलब 0 वैल्यू ना भी मिली ऑपरेटिंग सिस्टम को, तुम्हें क्या लगता है प्रोग्राम अगर सक्सेसफुली भी रन किया है और तुमने यार रिटर्न 1 कर दिया है, रिटर्न 1 इंस्टेड ऑफ 0, रिटर्न 1 मतलब प्रोग्राम डजंट रन सक्सेसफुली बट एग्जीक्यूट हो गया है। जस्ट टेल मी, क्या 1 देख के ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फर्क पड़ेगा? देखो, जो हमें काम कराना था हेलो वर्ल्ड, वो तो हो गया। अब मैंने यहाँ पे 1 प्रिंट किया है, रिटर्न 1 किया है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आया 1, ये बोल रहा है अच्छा प्रोग्राम डजंट रन सक्सेसफुली, पर असली में तो रन सक्सेसफुली हुआ है। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे, रिटर्न से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जस्ट एक मॉरल ऑब्लिगेशन होती है जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजते हैं। समझ आया? फीडबैक है, फीडबैक। अब देखो, ये बंदों ने जो काम कराया था, इसने चाहे बोल दिया काम अच्छा नहीं हुआ, फंक्शन तो अच्छे से हो गया है बट इन्होंने भेज दिया काम अच्छा नहीं हुआ, तो क्या इसे मैनेजर को कोई फर्क पड़ेगा? इसका काम था रन कराना, कमिटी बनाना और फंक्शन करवाना। रिजल्ट कुछ भी आए, अच्छा हो ना हो, इससे फर्क पड़ेगा? जस्ट टेल मी। रिटर्न ये होता था ना कि प्रोग्राम, नो सर, गुड, ओके सर, रिटर्न ये बताता है ना कि प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया है। प्रोग्राम नहीं खत्म हो गया है, ये देखो रिटर्न का बहुत सी चीजें होती है, रिटर्न का यूज अभी जब फंक्शन पढ़ेंगे तब समझ आएगा। बट इंट मेन के केस में रिटर्न क्या बताता है? इंट केस के ये ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है, क्योंकि मेन फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्च करता है इंटीजर मेन को, यहां से जो भी वैल्यू रिटर्न होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंस दे होती है। ये बस ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है इससे वैल्यू रिटर्न करना। एंड पॉइंट कहते हैं, फंक्शन का एंड पॉइंट होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अभी जब आगे पढ़ोगे तो समझ आएगा, फंक्शन का एंड पॉइंट होता है। लाइक अगर मैं यहाँ पे आगे कुछ लिख दूं, एवरीवन सी, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एक और चीज, सी आउट कैसे हो, इफ आई राइट लाइक दिस, सी आउट कैसे हो, ओके, सो वंस यू हैव रिटर्न्ड, समझ लो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया मेन फंक्शन सी आउट, सी आउट को कैसे रीड करोगे? कंप्यूटर प्लीज आउटपुट हेलो वर्ल्ड। सो समझ लो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अभी आई विल शो यू वेयर इट विल प्रिंट। प्रिंट हो गया, इसने बोल दिया रिटर्न 1, यहां से ही रिटर्न हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास हो गया 1 रिटर्न हुआ है, प्रोग्राम डजंट रन सक्सेसफुली। जस्ट टेल मी, क्या ये रन होगा? समझ लो भाई, मैनेजर वाली स्टोरी। मैनेजर ने कमिटी बुलाई, फंक्शन कराओ, यहां पे सब लोगों ने अपना फंक्शन किया, डांस वांस हुआ, सब हुआ। देखो, कुछ वर्क बचा हुआ था, सोचो सिंगिंग कंपटीशन बचा हुआ था, बट तुमने यहां से ही बोल दिया कि हाँ, चाहे बोला हो सक्सेसफुली रन हो गया या अनसक्सेसफुल रन हो गया। जस्ट टेल मी, क्या अब ये वापस सिंगिंग कंपटीशन हो पाएगा? तुम्हारा डांस कंपटीशन हुआ था, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, just the dance competition was completed and you have returned it was run successfully, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम वापस सिंगिंग कंपटीशन के लिए वेट करेगा? एक बार रिजल्ट मिल गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, दैट मींस एंड। ये फंक्शन का एंड होता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब ये आगे वाली लाइन नहीं चलेगी। जैसे इसमें सिंगिंग कंपटीशन अगर रह गया था ना, इफ इट वाज लेफ्ट आउट, सो
it will be left out. Now it will not happen again. That is the simple thing. Return के बाद वाले statement will not run. Okay. So return से पहली main logic लिखा जाता है. Before giving the feedback, complete thing should happen. Feedback के बाद कोई भी काम करोगे, that is of no value to operating system. Okay. ठीक है. Int main I got it. Everyone see. ये प्रोग्राम है. बिफोर गेटिंग टू हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड नेम स्पेसेस, इसे रन करके देखते हैं. ओके, हाउ विल वी रन? देखो यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन इज विजिबल. यहाँ पे यू विल क्लिक एंड यू विल क्लिक ऑन न्यू टर्मिनल. ओके, सो देखो सी हियर, रिटर्न 0 ना हो तब भी रन होगा बाद वाला. यस, नहीं तब भी रन होगा. आई एम सेइंग ना, इट इज जस्ट फीडबैक फॉर्म. ये फीडबैक है. 0 1 मींस नथिंग टू ऑपरेटिंग सिस्टम. ये बस बताता है रन सक्सेसफुली हुआ है नहीं हुआ. इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा कि क्या एग्जीक्यूट होगा क्या नहीं. एक बार ये रन हुआ, फीडबैक मिला, आगे वाली लाइन कभी नहीं रन करेंगी, चाहे ये सक्सेसफुली रन हुआ हो चाहे ये अनसक्सेसफुली रन हुआ हो. समझ आया नहीं? जैसे समझ लो वही, ये मैनेजर है, इसने कॉल किया, पार्टी यहां पे हुई, डांस पार्टी अच्छी हुई खराब हुई, यहां से इसने रिस्पॉन्स दिया, ये उसने बोला अच्छी, मतलब गुड और बैड, इट विल नॉट मैटर. एक बार रिस्पॉन्स इट इज गॉट, ऑपरेटिंग सिस्टम बोला बस पार्टी खत्म, सिंगिंग कंपटीशन रह गया तो लीव इट. एक बार रिस्पॉन्स मिला, स्टॉप व्हाटएवर इज बीइंग हैपनिंग आफ्टर दिस. गेटिंग एवरीवन? रिटर्न का यूज, हाउ डज इट वर्क? Return statement as soon as it comes, stop. Okay, positive feedback, negative feedback, doesn't matter. Okay, abhi I know many of the things might not be clear, but don't worry, abhi धीरे धीरे when we will solve more question है, you will get it. Wire cut कर दी तो आगे light ना, हाँ वही. पलक to everyone, हाँ ये भी ठीक है. That is for function. अभी पलक ये सब बताएंगे तब अभी देखना. ओके ओके, सो एक बार ये हमने ऑन किया कंपाइलर. एवरीवन सी, मैंने C++ का कोड तो लिखा है यहाँ पे. हाउ विल आई रन इट? देखो अब कंपाइलर कैसे कॉल करें. देखो अभी व्हेन यू विल सेट अप द विजुअल स्टूडियो कोड ना, वीडियो में देख के, तो MinGW कंपाइलर यू हैव टू इंस्टॉल. उसके अंदर होता है G++ कंपाइलर. ओके, G++ कंपाइलर, G++, ये कंपाइलर है C++ के लिए. अभी के लिए समझो. ओके, ऑल द सेट ऑफ फाइल्स रिक्वायर्ड टू कंपाइल C++ इज इन G++. MinGW अभी इंस्टॉल करोगे, यू विल सी, अभी वीडियो मिल जाएगा. तो ये G++ कंपाइल करता है C++ फाइल को. ओके, सो अब मुझे ये प्रोग्राम कंपाइल करना है. .cpp फाइल, मैंने ये कोड लिख दिया है. आई वांट कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो. कैसे करना है? कंपाइलर को कैसे कॉल करें? G++ है ना नाम उसका. ओके, सो यहां पे देखो कंपाइलर में लिखो G++. ओके, अगर देखो मैं G++ लिखूं माइनस वर्जन, ये लिखोगे तो यहाँ पे कुछ प्रिंट होगा. ये देखो G++ MinGW की तरफ से है, ये .org 6.3.0 ये वर्जन है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन समथिंग लाइक दैट. ओके, सो मतलब ये विजिबल तो है. ओके, ये चेक कर सकते हो कि G++ कंपाइलर इज इंस्टॉल्ड और नॉट. अब देखो CLS होता है क्लियर स्क्रीन, एंटर किया क्लियर हो गई स्क्रीन. अब देखो बट मुझे तो रन कराना है ना, G++ हो या ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता. अब देखो जब होगा तभी इट विल रन. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग इज इट विल रन व्हेन इट इज देयर. सर C एंड C++ का कंपाइलर सेम होता है क्या? नो. देखो C के लिए होता है लाइक G++ कंपाइल C++, फॉर C इट इज GCC. ओके, GCC if you will write it will compile C. G++ if you will write it will compile C++. Okay, now this is a C++ program. How can I compile? Everyone read with me. G++. Okay, G++ compiler. compile किसे करना है? Everyone tell me. Name क्या है? hello world.cpp. देखो HELL, same name I have typed, hello world.cpp. G++ take this file. Okay, hello world.cpp. मुझे करना क्या है? इसका आउटपुट फाइल बनानी है ना .exe फॉर्मेट में. करेक्ट, कि ये कंपाइल हो जाए .exe फॉर्मेट में. वो यूजिंग डायरेक्टली इफ आई वांट टू रन इट आई कैन रन इट. सो कैसे रन होगा? एवरीवन सी, G++ hello world.cpp, इसको देखो -o, राइट इट -o.
ओके, माइनस ओ राइट करोगे तो क्या होगा, ये बोल रहा है कंपाइलर को उसे ऑब्जेक्ट फाइल में कर दो, लिंकिंग लोडिंग प्रोसेस वो इंटरनली हो जाएगा। ओके, जी प्लस प्लस कंपाइलर हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी को, अरे यार एक सेकंड, ये क्या हो गया, एंटर दब गया क्या, वापस लिख रहा हूं, जी प्लस प्लस हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी माइनस ओ। ओके, और क्या करना है, एवरीवन सी हियर, यहां पे सिर्फ सिंगल फाइल इज देयर, हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी। अभी देखना, इसके बाद G++ कंपाइलर टेक दिस फाइल hello world डॉट सीपीपी, इसे कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट फाइल में, माइनस ओ आई हैव रिटन, एंड क्या नेम दे दो, मैं बोल रहा हूं इसका नेम दे दो एबीसी, एबीसीडी। ओके, सी हियर आई हैव रिटन एनी नेम एबीसीडी, एंड एज सून एज आई एंटर इट, एवरीवन फोकस ऑन हियर दिस साइड, देखना एक फाइल बनेगी, एंटर किया, देखो कुछ दिखा तुम लोगों को, abcd.exe, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू सी दैट, किसको किसको समझ आया, abcd.exe, ये फाइल बन गई है, ये कंपाइलर ने हमारे लिए किया, G++ ने, इसने क्या किया, hello world डॉट सीपीपी फाइल ली, देखो ये G++ हमारा कंपाइलर है, यहां से hello world डॉट सीपीपी फाइल आई, hello world डॉट सीपीपी द हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, इसे पूरा कंपाइलर वाले स्टेप्स हुए, माइनस हो, ये एक वो होता है ऑब्जेक्ट फाइल के लिए, एबीसीडी, सबको आवाज आ रही है नहीं आ रही है, रिस्पॉन्स क्यों गायब हो गया, या सो गए हो, आ रही है ना, ओके, सो सी हेलो वर्ल्ड डॉट सीपीपी आई, कंपाइलर लिया, आउटपुट फाइल का मैंने नेम दिया एबीसीडी, उसका नाम रख देना। ओके, आई हैव रिटन ना हियर एबीसीडी, तो abcd.exe फाइल आउटपुट हो गई, एवरीवन सी, ठीक है, abcd.exe, अब ये फाइल बन गई है, अब एवरीवन जस्ट टेल मी, exe फाइल बन गई है, हाउ कैन आई रन इट, मुझे तो हेलो वर्ल्ड चाहिए था ना, अभी तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ, सो रन कहां से होगा, मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करनी होगी, यस या नो, एग्जीक्यूटेबल फाइल, सो कैसे रन करना है, abcd जस्ट टाइप इट्स नेम, ओके, .exe, यही नेम है इसका, abcd.exe, abcd.exe, just write it here and enter, and just tell me क्या what is printed here, can I see a hello world here, रवि उपाध्याय सर, इतनी अच्छी क्लास में नींद नहीं आ सकती, अच्छा फिर ठीक है, गेटिंग एवरीवन, हेलो वर्ल्ड मिल गया, प्रिंट हो गया, जो हमें चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखता है, एवरीवन सी, कुछ और लिखता है, हेलो वर्ल्ड, हेलो की जगह हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल, देखो देयर इज वन चेक, /n, ये /n पता लिखते हो तो दैट मीन्स चेंज इन लाइन, ओके, चेंज इन लाइन के बाद आई एम राइटिंग, देखो वेयर आर यू ऑल, ये लिख देता हूं, वेयर आर यू ऑल, देखो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये सी आउट के अंदर आई हैव जस्ट रिटन हियर, इनसाइड इट /n मींस यहां तक नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, देखो कंपाइलर रीड कैसे करेगा, हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल, /n एज सून एज इट सीज ना, इट विल मूव टू नेक्स्ट लाइन, फिर नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा वेयर आर यू ऑल, तो सी, इसे कंपाइल वापस करके देखें हाउ इट विल डू, सी CLS करता हूं, क्लियर स्क्रीन हो गई, G++ कंपाइलर कंपाइल विच फाइल, अगेन कंपाइल करना पड़ेगा, वी हैव चेंज द कोड, कंपाइल कैसे करेंगे, he hello world डॉट सीपीपी, कन्वर्ट कर दो ऑब्जेक्ट फाइल में, नेम क्या दो, मैं बोल रहा हूं एबीसीडी दे दो वापस नेम, तो एबीसीडी देखना यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है ना पहले से, ये अपडेट हो जाएगा, देखना वापस न्यू फाइल नहीं बनेगी, अपडेट हो जाएगा, देखो ना एबीसीडी एंटर किया, देखो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअली में इसमें इंटरनली चेंज हुआ है, अब नाउ यू विल सी अगेन इफ आई विल राइट एबीसीडी, सो देखना क्या प्रिंट होगा, how many of you are able to understand that what is being printed now, how it is working, ऑपरेटिंग सिस्टम आया मेन, ओके, मेन में सी आउट, ओके, कंप्यूटर प्लीज आउटपुट, आउटपुट क्या करना है, हेलो गाइस प्रिंट करो, सी हियर हेलो गाइस प्रिंट हुआ डॉट डॉट डॉट, हाउ आर यू ऑल, हाउ आर यू ऑल के बाद ध्यान से देखना /n, दिस टेल्स द कंपाइलर
कि यहाँ के बाद नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। देखो यहाँ पे अगर स्लैश एन ना होता ना तो ये आगे प्रिंट होता, बट यहाँ स्लैश एन मिला तो यहाँ पे आ गए। अब एवरीवन सी यहाँ पे वेयर आर यू ऑल, एक ही स्टेटमेंट, हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, किसको किसको समझ आया? स्लैश एन को क्या बोलते हैं सर? इसे स्केप, ये जो ऑपरेटर होता है ना, ऐसे एस्केप ऑपरेटर कहते हैं। ओके, स्लैश एन इज फॉर नेक्स्ट लाइन। ओके, स्लैश एन मींस नेक्स्ट लाइन के लिए। ओके, एस्केप ऑपरेटर्स होते हैं ये सब, काफी चीजों के साथ यूज करते हैं, सिर्फ ये स्लैश एन नहीं होता, और भी फ्लैग्स होते हैं। ओके, स्लैश एन मींस नेक्स्ट लाइन पे चले जाओ। सी एवरीवन, एक बार बताओ नेक्स्ट लाइन अगर नहीं समझ आया, अगर मैं यहां पे लिख दूंगा एक और स्लैश एन, तो व्हाट विल हैपन? कैन एनीवन टेल मी? देखो क्या होगा एवरीवन, सी मैं यहाँ पे वापस करता हूँ CLS, सेम कमांड रन करता हूँ। देखो G++ hello world.cpp -o abcd, एंटर किया, देखो कंपाइल हो गया, यहाँ पे ABCD फाइल हुई, ABCD को रन करो। सी हियर, क्या यही आउटपुट यू वर एक्सपेक्टिंग? हेलो गाइस हाउ आर यू ऑल, स्लैश एन जैसे आया नेक्स्ट लाइन पे गए, वेयर आर एक और बार स्लैश एन आया, नेक्स्ट लाइन पे आया यू ऑल। समझ आया? यहां पे भी एक स्लैश एन कर दोगे तो ये ऑल यहां से हटके यहां नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। एवरीवन गॉट इट हाउ दिस स्लैश एन वर्क्स? ओके, चलो ठीक है, आई अंडरस्टूड इट। व्हाट इज दिस सी आउट स्टेटमेंट? व्हाट इज दिस रिटर्न जीरो? इंट मेन एंट्री पॉइंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ओके, आई गॉट इट। सो क्या हमारा कंपाइलर इतना इंटेलिजेंट है कि ये सिंपल ये 4-5 लाइनें देख के पूरा प्रोग्राम समझ लेता है क्या करना है? ये बताता कौन है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि ये सी आउट का काम क्या है? यस नो, ये बताता कौन है, इसका काम कैसे करना है? ऑब्वियसली ये सब डेफिनेशंस कि ये कैसे वर्क करेगा, ये कैसे वर्क करेगा, ऑल ऑफ दिस ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कॉल करेगा सबसे पहले, ऑल ऑफ दीज रिटर्न इज इन हेडर फाइल्स। ओके, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है। चलो अभी यहाँ पे एवरीवन जस्ट सी, ये सी आउट स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इसका भी डेफिनेशन इज रिटन इन हेडर फाइल। डू यू वांट टू सी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाइज स्लैश एन इज बेटर। अभी मैं ये प्रथम बताऊंगा अच्छे से कि स्लैश एन क्यों बेटर होता है एंडल से। स्लैश एन इज बेटर, व्हाई नॉट एंडल? ओके, स्लैश एन बेटर होता है क्योंकि यहाँ पे फ्लश ऑपरेशन भी होता है नेक्स्ट लाइन के साथ। फ्लश ऑपरेशन आई विल टीच यू व्हेन वी विल लर्न अबाउट बफर एंड फास्ट इनपुट आउटपुट। ओके, अभी से अभी क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी प्रथम, कुछ होता है बफर टाइप होता है फास्ट इनपुट आउटपुट में, सो स्लैश एन और एंडल में वही डिफरेंस होता है। ओके, यहाँ पे क्योंकि एक फ्लश ऑपरेशन भी होता है, ये सिंपल एस्केप स्टेटमेंट होता है। ओके, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो किस किस को देखना है कि अच्छा ये आईओ स्ट्रीम दिखता कैसा है? चलो लेट्स गो, एक बार देख लेते हैं कि असली में आईओ स्ट्रीम में ये सब डेफिनेशन लिखे होते हैं क्या। सी हियर, ओके देखो, जाते हैं माई कंप्यूटर्स में, सी ड्राइव में, देखो हेयर आर माई MinGW इज इंस्टॉल्ड, यहां पे गया, देखो यहां पे आके मैं यहां पे सर्च कर रहा हूं, एवरीवन सी आईओ स्ट्रीम, आईओ स्ट्रीम सर्च किया, देखो यहाँ पे कोई फाइल दिख रही है आईओ स्ट्रीम, देखो GCC MinGW 32 GC 6.302 इंक्लूड C++, समझ आ रहा है? इंक्लूड के अंदर C++ के अंदर कहीं आईओ स्ट्रीम फाइल है। एवरीवन सी मैं इसे ओपन कर रहा हूं विजुअल स्टूडियो कोड में, देखो अभी दिखाता हूं, स्क्रीन नहीं विजिबल होगी आई थिंक, ये देखो, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? ये देखो समथिंग इज रिटन, देखो ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, स्टैंडर्ड आईओ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट फाइल C++, देखो कॉपीराइट ये सब लिखा हुआ है, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, एक्चुअल फाइल है ना। सी हियर, सी एवरीवन समथिंग इज रिटन हियर। आईओ स्ट्रीम के लिए देखो इंटरनली इसमें और भी इंक्लूड की गई है फाइल, ओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम, करेक्ट, ये बिट्स std++ config.h, ये ऑल ऑफ दीज फाइल्स आर देयर इन आईओ स्ट्रीम। सोचो आईओ स्ट्रीम के अंदर ये सब फाइल वापस इंक्लूडेड है। अभी सी, अभी कुछ शो होगा, किसी को कुछ दिखा क्या?
सी इन, सी आउट, सी अर, समझ आया? इन सब के बारे में लिखा कहाँ है? ये देखो, ओ स्ट्रीम होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन अंडरस्टैंड इट। आईओ स्ट्रीम ये मेक होता है, बनता किससे है? ये बनता है आई स्ट्रीम बेसिकली एंड ओ स्ट्रीम। देखो, आईओ स्ट्रीम का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। आई स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? इनपुट स्ट्रीम, मतलब इनपुट वाले काम पूरे। ओ स्ट्रीम का काम होता है आउटपुट स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम क्या हुआ? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, करेक्ट। तो सारे मोस्ट ऑफ द इनपुट आउटपुट वाले वर्क कौन करता है? आईओ स्ट्रीम, करेक्ट। ये देखो, सी आउट क्या होता है? आउटपुट के लिए होता है एवरीवन, आउटपुट के लिए, तो ओ स्ट्रीम यूज करेगा। सी एर ये भी आउटपुट में यूज होता है, एरर देता है, तो ओ स्ट्रीम में होता है। सी इन क्या होता है एवरीवन? इनपुट के लिए होता है, अभी बताऊंगा लेटर, डोंट वरी अबाउट इट। ये इनपुट स्ट्रीम का पार्ट होता है, आई स्ट्रीम। एवरीवन गॉट दिस? देखो, इनके बारे में काफी कुछ लिखा होगा, एक्चुअल डेफिनेशन तो उसमें दिखेगी आई स्ट्रीम और नो स्ट्रीम में, बिकॉज डायरेक्टली इंक्लूडेड नहीं है। एक्सटर्न लिखा है ना, देयर इज वन एक्सटर्न कीवर्ड, अभी नहीं बताऊंगा, आई विल टेल यू लेटर कि डिफरेंट फाइल से डेफिनेशन को एक्सटेंड कराने में एक्सटर्न यूज करते हैं। ओके, सी हियर, देखो यहाँ पे काफी कुछ लिखा गया है। यहाँ पे देखो, आईओ स्ट्रीम फाइल इतनी छोटी सी है, बट डू यू थिंक सी इन और सी आउट की डेफिनेशन इज जस्ट दिस? इतने से काम थोड़ी चलेगा। Why? Because actual definition of it is again written in where? जो ओ स्ट्रीम सी आउट लिखा था ना, सी लॉग होता है, अभी डोंट वरी अबाउट इट, ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है। सोचो, ओ स्ट्रीम और ये आई स्ट्रीम, इनके अलग इंप्लीमेंटेशन, इनके अंदर एक्चुअल डेफिनेशन लिखी होगी। चलो वो भी शो करता हूं। ये देखो, आईओ स्ट्रीम तो कितनी छोटी सी फाइल थी, 100 लाइन का भी कोड नहीं है, ओके, आईओ स्ट्रीम का। बट यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई ना, हैश इंक्लूड ओ स्ट्रीम एंड आई स्ट्रीम, इनको एक बार देख लेते हैं, ये इंक्लूड कर रहा है। सो सी, जिससे तुम्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हो ये एक्चुअली काम कैसे कर रहा है, इसलिए दिखा रहा हूं ये सब। ओके, आईओ स्ट्रीम इंटरनली कॉल करता है आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम को। अब नाउ सी, मैं ओपन करता हूं इसे। ओके, एवरीवन सी हियर, दिस इज आई स्ट्रीम फाइल। नाउ ये देख सकते हो, ये थोड़ी बड़ी लग रही होगी। देखो कितने लाइन का कोड है, ये जाते रहोगे, ये थोड़ा बड़ा कोड है, यस या नो? क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल डेफिनेशन इज रिटन। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड? हाउ मेनी लाइन कोड इज देयर? ये 936 लाइन का कोड है, 936 लाइन का कोड। सो ये क्या थी? आई स्ट्रीम, इनपुट वाला सारा काम हो रहा है इसमें। एवरीवन इज गेटिंग और नॉट? सर ये बिन पार्ट है ना जी प्लस प्लस का, यस। अभी रवि वो देखोगे ना तो समझ जाओगे। तो समझ आया, आईओ स्ट्रीम इंटरनली आई स्ट्रीम को कैसे रखता है एंड ओ स्ट्रीम को रखता है, एंड इसका बस यूज करता है। सी ओ स्ट्रीम का यूज करता है सी आउट के लिए, एंड सी अर एंड सी लॉग के लिए, इनपुट के लिए यूज करता है सी इन को। एट द रेट अभी बता दूंगा यार, ये सब अभी इतना सीरियसली मत जाओ अभी इसमें, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, अभी जितना बता रहा हूं अभी उतना समझते रहो। ओके, तो समझो इसमें कहीं अभी सी इन सी आउट दिखाता हूं। ओके, कंट्रोल एफ, सी इन, ये देखो यहाँ पे ये सारे फ्लैग्स लैग्स लिखे हुए हैं, सी इन। और यहाँ पे अगर तुम ध्यान से कुछ देखोगे तो तुम्हें कुछ और भी दिख रहा होगा, एसटीडी, यस या नो? किसने ऑब्जर्व किया? एसटीडी समथिंग लाइक देयर इज रिटन। और अगर ध्यान से अगर याद होगा तुम लोगों को, तो यहाँ पे भी कुछ हमने एसटीडी लिखा था, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यस या नो? ओके, तो ये कुछ एसटीडी मतलब यूज तो है इसका, करेक्ट, फालतू में तो लिखा नहीं है। ओके, यहाँ पे भी एसटीडी लिखा हुआ है, और भी जगह लिखा होगा, जहां जहां सीन लिखा होगा बहुत जगह लिखा होगा। ओके, एसटीडी का यहाँ पे भी दिखाते हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। वन सेकंड, ये देखो, एवरीवन सी हियर समथिंग इज रिटन नेम स्पेस एसटीडी, एंड सी हियर यहाँ पे भी हमने कुछ लिखा है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यस और नो? ओके, सो ये एक्चुअली में है क्या? मैंने हेडर फाइल बोला, हेडर फाइल के अंदर इज डेफिनेशन रिटर्न फॉर ऑल ऑफ दिस, हाँ स्टैंडर्ड है, होता है।
अभी देखो मैंने जस्ट बताया था कि IOStream is a header file in which definition of these things are written कि what are these things going to do. Yes, right now मैंने यही बताया था कि header files contains information and definition, you can say contains definition and functionalities of different things, of different keywords that we use, contains definitions of different things that we use in a program. But ये namespace क्या है? Everyone see, ये first of all everyone just tell me, hash in IOStream का मतलब समझ आया? What is this IOStream? IOStream is a file that we tells our compiler hash include कि this file, when you are going to use this file ना, include कर लेना इसको, इस फाइल को include. why? Because अगर cout statement होगा ना, देखो if I will not use this statement, so अभी तुम्हें use दिखेगा कि अगर मैं नहीं लिखूंगा ये statement IOStream, so what will happen? देखो मैं ये हटा दे रहा हूं, इसे हटाया मैंने. अब everyone see, यहाँ पे कुछ error आ रहा है. Everyone see, identifier cout is undefined. Yes or no? Why this? क्योंकि अब इसके पास डेफिनेशन नहीं है. कंप्यूटर को तो समझने के लिए कुछ चाहिए ना, ये सी आउट का वर्क क्या है. दैट वर्क वाज रिटन इन IOStream. तुमने वो इंक्लूड ही नहीं किया फाइल, तो कैसे समझेगा? हाउ विल इट अंडरस्टैंड व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस? करेक्ट. So that's why we need to include IOStream file so that it works properly. So देखो hash include जैसे करूंगा IOStream. ओके, अब यहां से एरर चला जाएगा क्योंकि नाउ कंपाइलर नो व्हाट इज द वर्क ऑफ सी आउट. थोड़ा समझ लेते हैं. IOStream के अंदर डेफिनेशन लिखी थी, इनका मीनिंग लिखा हुआ था, दैट्स व्हाई इट वाज वर्किंग. बट एवरीवन सी, तो ये सी इज एसटीडी क्या है? अब समझना, अभी एक वर्ड समझोगे. एक चीज होती है डेफिनेशन, एक चीज होती है डिक्लेरेशन. ओके, चलो वो फंक्शंस आएगा तब बताऊंगा. अभी के लिए फॉर एग्जांपल जस्ट समझ लो, एक्चुअल जो होता है नेम स्पेस का मतलब समझो. एक जैसे लाइब्रेरी है, एवरीवन सी, अभी के लिए एक लाइन मेरी समझना, ध्यान से सुनना. आई एम सेइंग सी आउट इज व्हाट? सी आउट ये बोल रहा है ये प्रिंट करो. ओके, डेफिनेशन इसका वर्क कहां पे लिखा है? IOStream में. बट हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं यूजिंग नेमस्पेस std. व्हाट डज दैट मीन? यस सर, what does that mean? कि whenever you are going to use cout, everyone see, whenever you are going to use cout, ये definition जो इसकी use करोगे कि what it is going to do, you are going to use that definition from standard namespace. okay, std namespace. यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे किया IOStream. ध्यान से देखो, यहाँ पे iStream OStream है, बट देखो namespace std के अंदर यहाँ पे लिखा होगा. everyone see, सी इन सी आउट. यस या नो? तो जो नेम स्पेस एसटीडी के अंदर सी इन सी आउट लिखे हैं, इन्हें यूज करना है. एवरीवन गेट इट? अच्छा, नेम स्पेस एसटीडी वाले यूज करना है क्या? और भी होते हैं क्या सी इन सी आउट? करेक्ट एवरीवन? ये डाउट आ रहा होगा. तुमने बोला कि IOStream के अंदर डेफिनेशन लिखी है स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर सी आउट की. सो मैं बोल रहा हूं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी व्हेन आई रोट इट, that tells a compiler कि whenever cout or is written, so directly standard का cout यूज करना. करेक्ट एवरीवन? सो क्या cout डायरेक्टली स्टैंडर्ड का यूज करना, does that mean कि cout के डेफिनेशन और भी डिफरेंट नेम स्पेस में लिखे होते हैं? अभी नेम स्पेस बताऊंगा क्या होते हैं. यही तो डाउट आएगा. ऑब्वियसली लिखे होते हैं, बट हमें कौन सा यूज करना है? स्टैंडर्ड वाला. अब एवरीवन सी, एक तुम्हें स्टोरी टाइप में समझाता हूं, जिसे नहीं समझ आ रहा है ऐसे समझना. तुम्हारे टीचर ने फुल स्टैक वाले बच्चों को तो बता रखा ही एग्जांपल, अगर रिमेंबर हो. जैसे तुम्हारा कोई टीचर है, ओके, ये तुम्हारा टीचर है, तुम बैठे हुए हो, तुमसे इसने क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डॉग. करेक्ट? तुमसे पूछा डेफिनेशन ऑफ डॉग. तुम्हारे पास क्या है? ये तुम हो, तुम्हारे पास एक दो, चलो 3 डिक्शनरीज हैं. एक तुम्हारे पास है ऑक्सफोर्ड वाली डिक्शनरी जी. अरे रुक जा. हाँ, अच्छा चल, पर्सनल एस्पेक्ट चाहिए. एक तुम्हारे पास ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, एक तुम्हारे पास समझ लो कोई है यार, प्रिंसटन, कुछ भी मान लो यार, प्रिंसटन की होगी भी नहीं पता. ओके, प्रिंसटन की एक डिक्शनरी है,
एक XYZ की डिक्शनरी है, करेक्ट। अब एवरीवन सी, क्या सारी डिक्शनरी में सेम मीनिंग लिखा होता है? जस्ट टेल मी, सारी डिक्शनरीज में क्या सेम मीनिंग लिखा होगा डॉग के लिए? मे बी देखो, इस वाली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा होगा डॉग इज अ एनिमल, इज अ एनिमल, ये लिखा हो। इसमें लिखा हो डॉग इज अ फ्रेंड टू ह्यूमन। रैंडम बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है ये लिखा हो, फ्रेंड टू ह्यूमन। इसमें लिखा होगा डॉग के सामने, एवरीवन सी, डॉग की डेफिनेशन लिखी होगी फोर लेग्ड एनिमल, फोर लेग्ड एनिमल, करेक्ट। डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है, यस और नो? डेफिनेशन ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकती है, बट मेन थिंग इज हमें डेफिनेशन यूज कौन सी करनी है। ओके अगर टीचर ने बोला यू हैव टू यूज ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन, तो तुम ये डेफिनेशन बताओगे, यस और नो? डिपेंड्स ऑन योर यूसेज। अगर टीचर ने पूछा XYZ वाली डेफिनेशन बताओ, देन यू विल टेल अस फोर लेग्ड एनिमल, करेक्ट? फोर लेग्ड एनिमल। अगर उसने पूछा प्रिंसटन वाली डिक्शनरी का डेफिनेशन बताओ, तो यू विल टेल इज अ फ्रेंड टू ह्यूमन। सो डेफिनेशन में वेरी अकॉर्डिंग टू डिक्शनरीज, यस और नो? सिमिलरली सी आउट, ये भी एक वर्ड है, समझ लो डॉग, ये डॉग है सी आउट, इसका डेफिनेशन इज रिटन समवेयर, आईओ स्ट्रीम में स्टैंडर्ड में लिखा था। अब देखो स्टैंडर्ड वाला डेफिनेशन तुम यूज कर रहे हो, सिमिलर समझ लो इज द एनिमल वाला यूज कर रहे हो, बट क्या ये मीन करता है कि और डिफरेंट डेफिनेशंस नहीं हो सकते? ऑब्वियसली हो सकते हैं। अगर तुम यहाँ पे कोई और डिफरेंट नेम स्पेस हो, मुझे नहीं पता, हो सकते हैं। अभी तुम स्टैंडर्ड वाले यूज कर रहे हो, तो ये डेफिनेशन वर्क कर रही है। अगर यहाँ पे नेम स्पेस एसटीडी ना लिखो ना, तो कोई और डेफिनेशन भी यूज हो सकती है। अकॉर्डिंग टू यूसेज डेफिनेशन में वेरी। अभी हमने यहाँ पे लिखा ना यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी, दैट इज टेलिंग आवर कंपाइलर कि स्टैंडर्ड वाले नेमस्पेस से यूज करो। ओके सो सिंपल थिंग इज देयर, ये समझ लो। अभी इसके केस में तुम्हें ऑब्जर्व कराता हूं कि कैसे वर्क कर रहा है। समझ लो हाइयो स्ट्रीम है, बट नेम स्पेस डिफरेंट है। एक नेम स्पेस है, नेम स्पेस इक्वल टू डिक्शनरी समझो, इक्वल टू डिक्शनरी। देखो इतने इंटरनली अच्छे से नहीं समझ आता, इसलिए बहुत अच्छे से समझना, लोग इसे नहीं समझा पाते जल्दी। नेम स्पेस समझना इक्वल टू डिक्शनरी, ओके? सो हमारे एसटीडी को समझना इक्वल टू ऑक्सफोर्ड। कोई XYZ को मान लो प्रिंसटन वाली डिक्शनरी के बराबर, ओके? तुम्हें यूज क्या करना है, सी आउट को समझ लेना इक्वल टू डॉग। समझ आ रहा है क्या मतलब है? थोड़ा कंपैरिजन कर पा रहे हो? हमें यूज करना था सी आउट। सी आउट कहां का यूज करो, हमने लिखा है यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, मतलब कौन सी डिक्शनरी यूज करना, कभी भी सी आउट यूज करना। डॉग की डेफिनेशन कहीं भी चाहिए होगी, कहां से लेना, ऑक्सफोर्ड से लेना। सिमिलरली सी आउट यूज करना तो कहां से लेना, स्टैंडर्ड से लेना। ओके यस सर, ऑसम एक्सप्लेनेशन। चलो गुड, अगर समझ आ रहा है तो सही है। नेम स्पेसेस क्लियर हुए? नेम स्पेसेस इक्वल टू डिक्शनरी, ओके? डिक्शनरी किस लिए होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। लाइक इसमें ना नेम स्पेस के अंदर ही डेफिनेशन लिखी होगी, सी आउट ये करता है, सी इन ये करता है, ओके? ऐसी डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी होंगी। ऐसे ही दूसरे भी हो सकते हैं नेम स्पेस। समझ लो ये नेम स्पेस XYZ है, ये नेम स्पेस स्टैंडर्ड है, यहां पे भी लिखा हो सी आउट, यहाँ पे लिखा हो सी आउट, जब भी करो कुछ मतलब डिफरेंट डेफिनेशन है, यहाँ पे सी इन की डिफरेंट डेफिनेशन है। हमें कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, स्टैंडर्ड वाली। ये मे बी अगर तुम्हें कोई और यूज करनी होगी ना XYZ की, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग एसटीडी यहाँ लिख दो XYZ। अभी एरर आ जाएगा क्योंकि XYZ कोई है नहीं, समझ आ रहा है? XYZ कुछ एक्चुअल में नहीं है, इसलिए एरर दे सकता है। अब जाकर समझ आया क्या होता है, ग्रेट एक्सप्लेनेशन, गुड। चलो समझ आ गया। नेम स्पेसिस क्या होते हैं, नेम स्पेसिस इक्वल टू डिक्शनरीज। कौन सा डेफिनेशन यूज करना है दैट डिपेंड्स। सर स्टैंडर्ड भी एक लाइब्रेरी है ना, लाइब्रेरी नहीं है स्टैंडर्ड, एक डिक्शनरी की तरह भी समझो, लाइब्रेरी नहीं कहते। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होती है, वो डिफरेंट चीज है, ये स्टैंडर्ड एसटीडी डिफरेंट चीज है।
स्टैंडर्ड बस एक नेम है। चलो नेम स्पेस को समझाता हूं कैसे। नेम स्पेस क्या है, तुम कोई भी जगह ऐसे लिख दोगे नेम स्पेस, जैसे एक नेम स्पेस मैं खुद का बनाता हूं। अभी देख लो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, डोंट वरी। अभी देखो नेम स्पेस को अच्छे से समझा देता हूं। ये मैंने हटा दिया, ओके। ये प्रोग्राम है अभी के लिए। मैं यहाँ पे खुद का नेम स्पेस लिखता हूं एक। देखो नेम स्पेस मैं लिखता हूं XYZ, ये मैंने खुद का नेम स्पेस बनाया। एवरीवन सी, खुद का नेम स्पेस बनाया, ओके। इसमें मैंने बनाया एक वेरिएबल int a इक्वल टू 10, ओके। अब देखना ये क्या बोलता है कि ये एक नेम स्पेस XYZ है, इसमें जो एक ही डेफिनेशन है a इज अ इंटीजर दैट इज स्टोरिंग 10। करेक्ट एवरीवन? अभी जिसे नहीं समझ आना, जिसे बेसिक भी नहीं पता, तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट जिसे आता है थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। एक मैंने बनाया ABC नेम स्पेस, ओके। मैंने इस वाले नेम स्पेस में देखो सेम नेम रखूंगा A, पर देखना डेफिनेशन अलग होगी। इसमें A है फ्लोट, एवरीवन सी, इसमें A है फ्लोट, A इज इक्वल टू 3.64। करेक्ट एवरीवन? किसको किसको थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या हो रहा है? मैंने दो नेम स्पेस बनाए हैं, नेम स्पेस ऐसे ही समझ आएगा, ओके। सो मेरी दो डिक्शनरी है, एक डिक्शनरी ये XYZ वाली है, एक डिक्शनरी मेरी है ABC वाली। इसमें मैंने A है, A की डेफिनेशन में पता है क्या लिखा है? A is a integer that is storing, A is a integer that is storing 10, ऐसा लिखा है। ये नेम स्पेस ABC है, इसमें लिखा होगा A के आगे A is a float that is storing 3.64। समझ आया? अब देखो अकॉर्डिंग टू यूसेज कैसे काम करेगा। इफ आई विल राइट हियर, देखो सी आउट, अभी देखना समझना, सी आउट दो तरीके से नेम स्पेस यूज कर सकते हो। देखो एक तो होता है यूजिंग वाला तरीका, यूजिंग हम लिखते थे ना, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। अब देखो अगर तुमने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, चलो यहां लिख देता हूं मैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है, ये तो लिखा हुआ है। सी आउट देखना काम करने लगेगा। अब एवरीवन सी, प्रिंट क्या करना है? तुम्हें प्रिंट करना है ए। देखो मैं यहाँ पे ए लिख दिया तो भी एरर देगा कि इसे समझ नहीं आया, ए तो यूज कर रहे हो बट किसका? कैन वी मेक आवर ओन डिक्शनरी? यस, यही तो दिखा रहा हूं। ये ओन डिक्शनरी, ऑन सी आउट भी डिफाइन कर सकते हो, दैट्स वाई तो ये कर ही रहा हूं मैं, समझो। ये ओन मैंने बनाया, देखो एक XYZ नेमस्पेस बनाया, उसके अंदर मेरा खुद का ए वेरिएबल है। एक नेमस्पेस ABC बनाया, उसमें खुद का ए वेरिएबल है। देखो डेफिनेशंस डिफरेंट डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। नेमस्पेस XYZ, नेमस्पेस ABC, समझ लो ये डेफिनेशन डिक्शनरी XYZ है, डिक्शनरी ABC है, ओके। अब देखो नेम, इससे अच्छा तो ये लिख देता हूं, ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन लिख देता हूं, ऑक्सफोर्ड और प्रिंसटन, ये मेरी प्रिंसटन वाली डिक्शनरी है, ओके। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है ए है एक इंटीजर जिसमें वैल्यू है 10, प्रिंसटन बोलता है ए इज अ फ्लोट जिसमें वैल्यू है 3.64। अब देखो यहां पे मैंने लिखा सी आउट ए, सी आउट क्या बोलता है? सी आउट प्रिंट करता है स्क्रीन पे। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रिंट करो कंप्यूटर प्लीज आउटपुट वैल्यू ऑफ ए। अब ए में बताओ वैल्यू को क्या है, 10 वैल्यू है या 3.64 है? ऑब्वियसली कंपाइलर तो कंफ्यूज होगा ना कि कौन सी डेफिनेशन यूज करनी है, तो तुम्हें बताना पड़ेगा उसे। बताओगे कैसे? देखो सिंपल वे है बताने का, तुम यूज कर सकते हो ये नेम स्पेस का वेरिएबल, ये बोलता है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखो तुम्हें ए यूज करना ना, ए किससे यूज करना है? मैं बोलता हूं ऑक्सफोर्ड से यूज करना है, तो यहां लिख दो ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के अंदर ये देखो, ये 4 लगाओ कोलन, मतलब 2 कोलन लगाओ और ए लिख दो, तो ये बताएगा कि ए यूज करो कौन सी वाली डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड वाली डेफिनेशन। सी हियर मैं लिखता हूं ऑक्सफोर्ड, समझ आया? अब देखो अब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं होगा, देखो काम करने लगा, एरर चला गया, अब कंपाइलर कंफ्यूज नहीं है। अब देखो मैं इसे कंपाइल करता हूं फिर देखना, ये मैंने किया कंपाइल, देखो G++, इसे मैं हटा देता हूं, छोटा कर देता हूं तो सही से दिखे। देखो यहां लिखा है वही G++ hello world.cpp -o abcd, एंटर किया। अब देखो रन करता हूं ABCD को, ABCD, अब एवरीवन सी, एंटर किया। अब देखना प्रिंट क्या होगा, 10 प्रिंट हुआ। वाई? क्योंकि देखो ऑक्सफोर्ड वाले ए में क्या स्टोर था, एवरीवन टेल मी, ऑक्सफोर्ड के ए में स्टोर था 10, बट अगर मैंने यहां ऑक्सफोर्ड की जगह प्रिंसटन यूज किया होता,
प्रिंसटन, तो क्या प्रिंट होता है? एवरीवन सी, प्रिंसटन की डेफिनेशन में लिखा है ए फ्लोट है 3.64। अब देखो मैं वापस कंपाइल करता हूं, कंपाइल किया और रन किया, इस बार देखो रन किया, अब प्रिंट होगा देखना 3.64। किसको किसको समझ आया कि कैसे काम कर रहे हैं ये नेम स्पेसेस? इजी है तो आ गया, चलो ठीक है। तो जस्ट टेल मी एवरीवन, अगर ऐसे लिख सकते हैं नेम स्पेस को, तो अगर मैं यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड हटा दूं तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है सी आउट में, इसको एरर बिना वो लाइन डाले हटा सकता है कोई? अरे सिंपल यार, इसके आगे लिख दो स्टैंडर्ड से सी आउट यूज करो, एसटीडी का यूज करो सी आउट। किसको किसको समझ आया ये? हाउ डिड आई रिमूव दैट एरर? सिंपली बाय यूजिंग दिस। अब देखो, अगर मैं चाहता हूं हर बार मुझे प्रिंसटन और ऑक्सफोर्ड नहीं लिखना है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट वैल्यू हो प्रिंसटन, तो मैं पता है क्या देखना, अभी ए लिखा तो एरर आएगा, क्योंकि कंपाइलर देखना समझ नहीं पा रहा है ये ए कहां का है, अनडिफाइंड बता रहा है। तो यहां पे एक लाइन लिख दो, देखो यहां पे मैं एक लाइन लिख रहा हूं, यूजिंग नेम स्पेस प्रिंसटन, कहां गया हूं, हाँ प्रिंसटन। अब ये पता है कंपाइलर को क्या बोल रहा है? यूजिंग नेमस्पेस क्या बताता है कि नॉर्मली अगर तुम कोई आगे वर्ड नहीं बता रहे हो कि किस डिक्शनरी से यूज करना है, तो अगर तुमने यूजिंग नेमस्पेस कहीं लिख रखा है ना, तो बाय डिफॉल्ट इस नेमस्पेस पे जाता है जिसका भी नाम लिखा होता है। एवरीवन गॉट दिस? अब देखो प्रिंसटन किया है ना, तो यहाँ पे अब मैं यार एक सेकंड, अब यहाँ पे मैं रन करूंगा जब, अब देखो रन करूंगा तो देखना आउटपुट क्या होगा, प्रिंट 3.64। How many of you are able to see that? आउटपुट प्रिंट हुआ 3.64, इवन आई हैव नॉट रिटर्न। बट अगर मैं ये हटा दूं, अगर सोचो इसकी जगह होल्ड हो गई है, ओके, इसकी जगह यहाँ पे मैं यूजिंग नेमस्पेस ऑक्सफोर्ड लिख दूं, तो जस्ट टेल मी किसकी डेफिनेशन यूज होगी बाय डिफॉल्ट? ये बाय डिफॉल्ट के लिए होता है यूजिंग नेमस्पेस ऑक्सफोर्ड, अगर कोई नाम ना लिखो। अब ऑक्सफोर्ड वाली 10 वाली डेफिनेशन प्रिंट होगी, अब देखना 10 यूज होगा। अगर मैं ये पूरा ही हटा दूं तो क्या होगा? अब एरर देगा, क्योंकि आप कंफ्यूज है ए किसका, देखो ए ऑक्सफोर्ड का प्रिंसटन का, तो अलग से बताना पड़ेगा, ऑक्सफोर्ड का यूज करो, ऑक्सफोर्ड का यूज करो ये ऑपरेटर के साथ। इसे कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, कि ये कहां पे है ये बताता है। स्कोप रेजोल्यूट करता है, रेजोल्यूट मतलब बताता है, क्लियर करता है। देखो ऑक्सफोर्ड वाले स्कोप में जाओ, उधर से तुम्हें रेजोल्यूशन मिलेगा ए का, ओके, ए का स्कोप है ऑक्सफोर्ड से लो जाके। गेटिंग एवरीवन? सी आउट कहां पे है? एसटीडी में है, तो उसकी डेफिनेशन लाओ। एवरीवन गॉट इट? ए यूज करना है एक्स वाई जेड का, तो कैसे लिखोगे? ए यूज करना है एक्स वाई जेड का, एक्स वाई जेड लिखो, 2 कोलन लगाओ, ए लिख दो, इससे प्रिंट होगा 10। एवरीवन गॉट दिस? नेम स्पेसेस। अब बताओ नेम स्पेसेस में किसी को डाउट है? व्हाट इज दिस नेम स्पेसेस थिंग? किसको किसको समझ आया? नेम स्पेसेस में कोई डाउट हो, कैसे वर्क करते हैं? ऑल क्लियर? चलो ठीक है। टीईएस क्या सर? उसमें क्लास के अंदर फंक्शन को कॉल करके बाहर डिफाइन करते हैं तो स्कोप, यस करेक्ट रवि, ऐसा भी करते हैं, उसमें करते हैं। आ गया सर, नो डाउट। चलो ठीक है, अब एक छोटा सा होमवर्क है, ठीक है? सब लोग एक बार क्या करना, देखो इधर आ जाओ। ओहो, अब सब लोग होमवर्क आज के लिए इतना है, ये हटाता हूं। अंडरस्टूड, इट्स अ गॉट टू नो न्यू थिंग्स, गुड। सी, एक बार आईओ स्ट्रीम फाइल की डेफिनेशन अपने में ना खुद ओपन करके देखना, आईओ स्ट्रीम, आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम को, अरे यार हट जा, ओ स्ट्रीम को, ठीक है? इनके एक बार अपने खुद ओपन करना, सिंपल मिंजी में जाना और सर्च कर देना, ओके, वीएस कोड में ओपन करना एंड अपना वीएस कोड अच्छे से सेटअप कर लेना, ओके, वीडियो मिल जाएगा। ये काम है। नेम स्पेसिस के बारे में थोड़ा पढ़ के आना और डिफरेंट थोड़ा एक्सपेरिमेंट ट्राई करना, ओके? क्या ट्राई करना है? 2 नेम स्पेसिस बनाना, ओके, 2 नेम स्पेसिस बनाना और सेम जो जो वीडियो में किया है ना वो मैंने, वो खुद ट्राई करना, ओके?
same what I have done, try to do it done in the video, try to do it by yourself. Video, try to do it by yourself. एक एक लाइन लिखना, ओके? रन करना प्रोग्राम को G++ से, जैसे मैं लिखवा रहा था, ओके? सर ये सब कहीं से पूछा जाता है क्या? ऑब्वियसली नेम स्पेसेस बहुत पूछा जाता है, नेम स्पेस तो फेवरेट क्वेश्चन होता है, ओके? इवन मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था एक बार, शेप एआई वाले में ही पूछा गया था एक बार तो। ओके, नेम स्पेसेस पढ़ के आना। और सी आउट वाले जो भी हैं कुछ प्रोग्राम्स मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, अगर इतना भी कर लो, ओके? अभी के लिए इतना करके आना, ओके? छोटा सा होमवर्क है, अभी ज्यादा नहीं दे रहा क्योंकि अभी कुछ पढ़ाया नहीं है ऐसा। हाँ, वन मोर थिंग, कंपाइलर वाला पार्ट एक बार पढ़ के आना, जो स्टार्टिंग में दिया था ना, वो वीडियो से रिवाइज करना, वीडियो रिवीजन। अगर करोगे ये सब जो फॉलो करोगे, तो अगर फॉलो नहीं करोगे तो मेरी गलती नहीं है, जो बोल रहा हूं उतना करना होगा। यस, मैं वीडियो आज ही अपलोड कर दूंगा 2 घंटे के अंदर, ओके? कंपाइलर वाला वीडियो रिवीजन करना है, नेम स्पेस अच्छे से पढ़ना है, एक बार जो जो मैंने वीडियो में किया है वो खुद से टाइप करना है, ओके? जब तक खुद से वर्क ना करे ट्राई करना है। गॉट इट? और आईओ स्ट्रीम और इन सब की एक बार डेफिनेशन ओपन करके देखना है क्या एक्चुअली में क्या जो सर बोल रहे थे वैसा ही दिखता है, ओके? इसमें सी इन सी आउट कहाँ लिखे होते हैं, इनके डेफिनेशंस लिखे होते हैं क्या, ओके? नेम स्पेस कैसे होते हैं? सर क्लास के टाइम ये फिक्स्ड है, हाँ, अब से क्लासेस 8:30 पे हुआ करेंगी, 8:30 PM, ओके? 1.5 आवर्स टू 2 आवर्स जा सकती है क्लास। सर टर्मिनल से आउटपुट लेना जरूरी है क्या? हाँ, टर्मिनल से आउटपुट कंपलसरी है या ट्राई रन कर सकते हो? नहीं, टर्मिनल से। मैंने बोला ना, जब तक टाइप नहीं करोगे, टाइप करना जरूरी है, ओके? खुद से कोड करो, राइट करो कोड, कंपाइलर पे उसे रन करो, राइट कोड, रन करो उसे, और चेक करो क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है या एरर्स आ रहे हैं। प्लेलिस्ट लिंक आज सब मिल जाएगा, ओके? एवरीडे, हाँ, एवरीडे कुछ ना कुछ होमवर्क मिलेगा। आज के लिए छोटा सा है, कंपाइलर वाला जो ट्रांसलेटर वाला पार्ट बनाया था रिवीजन करके आना है, ओके? अच्छे से, तुम्हारे उंगलियों पे हो क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो सब ज्यादा डेप्थ में नहीं बताए हैं, बट एक बार सुन के आना है, ओके? पूछे नहीं जाते बट एटलीस्ट बेसिक पता हो, इसलिए बेसिक ही बताया है, ओके? नेम स्पेसेस ट्राई करना है, ओके? 2-3 नेम स्पेस बनाना, ABC XYZ और कुछ भी ऐसे, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस लिखना, अलग अलग तरीके से यूज करना, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के, ओके? यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी और ये सब ट्राई करना, ये क्यों यूज होता है यूजिंग नेमस्पेस वाला, ओके? बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट ये नेमस्पेस यूज हो तो यूजिंग नेमस्पेस लिखते हैं। एंड दीज फाइल्स को एक बार ओपन करके देखना खुद से, ओके? सिंपल सर्च बार में ये सर्च करना होगा जाके MinGW में जाके, ओके? किसी को कोई डाउट? एनीवन, किसी को कुछ पूछना हो? सर क्लास बस वीकडेज पे होगी, हाँ सत्यम, मंडे टू फ्राइडे होगी, नो डाउट सर। स्टॉप रिकॉर्डिंग। हाँ आदित्य, तू अभी भी याद दिलाता रहेगा मुझे रिकॉर्डिंग का।